Do you think कि Pakistan will still try to send infiltration? Even during height of Sindoor, they tried to infiltrate people from that area. लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद गाड़ी लेके नहीं चलेगा जब तक इसमें पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का फिजिकल सपोर्ट नहीं है. ये इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है. वाघा अटारी पे जो होता है वो जो सेरेमनी जो होती है, It is actually not the classic drill that we should be doing. But then it has become a tourist attraction. If that josh is not injected, probably tourists will stop coming. what you did to capture Ghazi Baba. मौलाना मसूद अजहर का डेप्टी गाजी बाबा जो आपका 1 अक्टूबर 2001 को JNK असेंबली पर अटैक एंड हिज फाइनल अटैक इज 13 दिसंबर 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक. BSF उस समय हेल्म ऑफ अफेयर पे थी श्रीनगर में. गाजी बाबा की सुरागरसी बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट कर रही थी कि जहां हम जा रहे हैं वहाँ इनकाउंटर होगा. और उस रेड में इसके सीक्रेट चैम्बर को ब्रेक करते ही हमारा इनकाउंटर हुआ और जैश मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर को 30 अगस्त 2003 को मार गिराया, जिसमें मुझे बड़ी सीवियर इंजरीज हुई थी. क्या इंजरीज थी? मेरा राइट हैंड शेटर्ड हो गया था कम्प्लीटली और एक स्टमक में गोली लग गई. वो अंदर ही है. किसने मारा था आपको? गाजी बाबा का शॉट था. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the NI podcast with Smita Prakash. My guests today are two gentlemen from the Border Security Force, which is considered the first line of defense, responsible for managing the international border with Pakistan and Bangladesh during peacetime, and is also deployed alongside the army along the line of control in Jammu and Kashmir. They played a crucial role in the 4-day conflict in Operation Sindoor. My guests are Narendra Nath Dubey, ex-BSF officer who led an operation in 2003 to capture Ghazi Baba. A movie was made about him, Ground Zero, in which Imran Hashmi played him. He was shot multiple times. One bullet still remains lodged in his body. My other guest is Sanjeev Krishan Sood, Additional Director General BSF retired. He has 38 years of service behind him. He served 8 years in the Samba sector JNK and discusses with us some of the incidents dating back right up till 1984. For those not aware, BSF's Western Command is headquartered in Chandigarh. It's tasked with the deployment and operations along the Pakistan border. The command is spread across 5 frontiers: Gujarat, Rajasthan, Punjab, which is responsible for the international border, and Jammu and Kashmir, which covers deployment along the LOC. Thank you, Dubey ji, for coming to the podcast. Sood sahab, aapko bhi thank you so much. Thank you. तो मैं I think I will begin जो न्यूज़ वर्दी स्टोरी है पहले मैं उससे स्टार्ट करूँगी, उसके बाद we'll go on to see the larger picture. तो पहले तो ये ट्वीट जो अभी आया है ये कल ही हुआ था, तो just about 19 hours back this was tweeted. This tweet reads that based on the input of the BSF intelligence wing, the vigilant BSF troops seized 01.DJI Mavic 3 classic drone in broken condition from a farming field adjacent to village Ratan Khurd of district Amritsar in the morning hours today. The drone is presumed to have fallen to technical interference of electronic counter measures deployed on the border. Keen observation and diligent efforts of the BSF troops thwarted yet another illicit drone intrusion from across the border. Now, this was tweeted by the BSF जो हमने चलाया था. This was on 18th of May. ये हुआ है. So this is what was done. मुझे आप बताइए कि ये जो हमने जो दोनों DGMOs हैं सीज़ फायर तो कर लिया या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ कह दीजिए, सीज़ फायर तो नहीं है, और हमने कह दिया हमारी तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी वैलिड है, राइट? वी हैव नॉट कॉल्ड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ के लिए दोनों DGMOs मान चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर ड्रोन मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये आर्म्ड हो सकते हैं या फिर ये स्मगलिंग वाले ड्रोन्स हैं? ये वाई इज़ द फ्रॉम द अदर साइड स्टिल सेंडिंग ड्रोन्स जब पता है कि कुछ भी हो सकता है? मतलब इंडिया कैन अगेन से कि हाँ ये तो इट वाज कैरिंग अ पेलोड और फिर स्टार्ट हो जाएगा हॉस्टिलिटीज़. सो व्हाई डू यू थिंक ये क्यों हो रहा है अभी? देखिए, ड्रोन्स जो हैं मैं नोट कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से लगातार आ रहे हैं, और उसमें मेनली पाकिस्तानीज़ जो हैं वो नारकोटिक्स भेजते हैं या आर्म्स एम्यूनिशन लॉजिस्टिक्स भेजते हैं अपने जो भी मिलिटेंट या स्लीपर सेल्स यहाँ पर हैं.
तो इन कई ड्रोन्स हमने गिराए हैं पीछे पास में भी, लास्ट ईयर ऑल्सो कोई 100 से ज़्यादा ड्रोन्स हमने गिराए हैं जी। तो ये हो सकता है कि ये ड्रोन उसी सीरीज का पार्ट हो, ये भी हो सकता है कि ये ऑप सिंदूर के टाइम में के बाद में लॉन्च किया हो फॉर सम सॉर्ट ऑफ रेकी मिशन, जिससे वो फोटोग्राफ्स वगैरह लेके हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। और आप सही ठीक बोल रही हैं कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ है, तो उसमें इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, और ये थोड़ा सा प्रोवोकेटिव है ना? मेरे को लग रहा है कि ये प्रोवोक कर रहे, कई और जगहों पर भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड नाउ ऑनर द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एग्रीमेंट, और ड्रोन्स वगैरह ना भेजें, जिससे कि हमें क्योंकि हम रिएक्ट करेंगे अगर तो फिर से बात बढ़ सकती है, क्योंकि 26th ऑफ अप्रैल को हाँ जी, मतलब you're talking about 22nd को पहलगाम हुआ था। हाँ, right, and on the 26th BSF recovered a drone which was carrying 4 packets of heroin, and this was found in Gurdaspur, and there was a pistol with a magazine and heroin in a field in Taran Taran. ये भी मिला है, मतलब ये इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या ये हो सकता है कि ये जो ड्रोन्स विद हेरोइन हो जाए या फिर स्मॉल आर्म्स हो जाए, ये जो भेजते हैं ये अलग डिवीज़न है, और जो DGMO जो कर रहा है, जो पाकिस्तान आर्मी कर रहे हैं, वो अलग डिवीज़न है। आफ्टर ऑल देयर इज़ अ मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या अलग अलग व्हाट शुड आई से प्लैनेट्स ऑफ ऑपरेशन हैं, क्या है? नहीं, प्लैनेट्स ऑफ ऑपरेशन तो सेम ही है, बट ये जैसा अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो ये फितरत है उनकी, इस तरह से प्रोवोक करते रहने की, इस तरह से काम कुछ ना कुछ उन्होंने डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ करनी है। ड्रग्स इज़ अ मेजर फाइनेंस फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्रग्स आते हैं, पैसा जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा हवाला से, फिर वो टेररिस्ट को भेज देंगे। सो ड्रग्स एंड वेपन्स हैज़ बीन अ रेगुलर थिंग फॉर लास्ट 4-5 years। ये जो आप कह रहे हैं कि ड्रग्स जो है ये उनकी फितरत है, ये भेजते रहना, मुझे ये भी लगा कि अभी अगर ये मिला है, कुड इट बी कि मसूद अजहर ने कसम खाई है कि जो द डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज फैमिली, कि वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, एंड मे बी दिस इज वन ऑफ दोज। It could be. It could be. It depends on what has been recovered along with the drone. जी। अगर उनके पास ammunition वगैरह निकले हैं, तो even drugs can be that. Even drugs can be there. So तब तो ये उसका part है. Otherwise it could be a simple recce kind of thing. Okay. जो फोटो मैपिंग कर रहे हो हमारे बॉर्डर एरिया की, कहाँ पे हमारी मोर्चे हैं, कहाँ पे हमारे ट्रुप्स हैं, ऐसे कई जगह राजस्थान में उन्होंने कई इस ड्रोन्स जो हैं ज़्यादातर इसी पर्पस से भेजे। दोज चीप ड्रोन्स फ्रॉम टर्की, वो दे आर लॉन्चिंग स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स, दे हैव लॉन्च्ड ड्यूरिंग सिंदूर। तो मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स वर नॉट आर्म्ड एज फार एज माई नॉलेज गोज, एंड मोस्ट ऑफ देम वर फॉर mapping, and they were of the brought area. down by some BSF guys with that AK guns and LMG. We don't have AK guns. We have LMGs. LMGs in AK roll. So LMG's range otherwise parallel to the ground is about 2000. तो AK roll में तो और कम हो जाएगा. So is the low flying drones we have been intercepting. We are in the process of acquiring technology जो जिससे इन्होंने गिराया है। दिस कुड बी कॉल्ड पैसिव टेक्नोलॉजी, कि इन्होंने लेज़र और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से उसको गिरा दिया। पैसिव टेक्नोलॉजी। एक्टिव टेक्नोलॉजी इज समथिंग गोज एंड हिट्स द रडार एंड सॉरी नॉट द रडार, द ड्रोन, and it falls down. So we are in the process, BSF is in the process of acquiring that. Once acquired, we'll have and spread all over the border, because drones जो हैं स्पेशली जम्मू, पंजाब और नॉर्दर्न पोर्शंस ऑफ राजस्थान, पीस टाइम में ये बहुत मेहनत है। सो इनके लिए हमें टेक्नोलॉजी
चाहिए। ये जब हम कह रहे हैं कि वी नीड टू एक्वायर दिस टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन्स को गिराने के लिए, आई बीन हियरिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम। जब हमने देखा कि जो इजराइल हमास वॉर हुआ है, उसके बाद हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का भी सुन रहे हैं। अब हमारा बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, हाँ जी। राइट? यू टॉकिंग बॉर्डर इन द सेंस, इवन इफ आई वाज टू से LOC एंड IB, across the border, so all these areas become sensitive to drones, and हम सुन रहे हैं कई सालों से कि ये drones आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वो जो 7-8 की रात को जब आपने देखा कि इतने drones आए हैं, did you think that इतना करेंगे to such an extent? Did you know? It wasn't expected, to है ना? be frank, कि इतने सारे drones आ जाएंगे एक साथ में। पर्सनली मैंने सोचा था कि उनका कुछ रिस्पांस हमारे जैसा ही होगा, मिसाइल्स अटैक्स वगैरह जैसा। अच्छा। तो उन्होंने तो ड्रोन्स किए, साथ में मिसाइल्स भी किए। ड्रोन्स परहैप्स, अब ये इसको फौज हैज़ टू कंसिडर ऑन दिस एस्पेक्ट कि ये ड्रोन्स इतने सारे उन्होंने ऐसे तो नहीं भेजे कि हमारा एंटी एयरक्राफ्ट रोल्स और एंटी एम्यूनिशन ख़त्म कराने के लिए और लोकेट करने के लिए डिफेंस। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने लोकेट करने के लिए और हमारा एम्यूनिशन ख़त्म हो जाए, इसके लिए शायद किया हो। दैट पॉसिबिलिटी द इंडियन आर्मी and the Air Force have to consider on that aspect. जी, I want to ask you, Dubey ji, you've done Jammu Kashmir and things. Why was it so hard to locate कि ये जो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं, ये जब भाग गए, इनको लोकेट करना क्यों इतना मुश्किल था in the terrain? So explain to me a little bit about that. एक्चुअली जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जिन्होंने बाईसरान वाली घटना की, वो पहले बात तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट बहुत ही उन्होंने होमवर्क करके किया था। क्योंकि अगर आप पहलगाम वैली के अंदर टूरिस्ट स्पॉट देखें तो वहाँ 4 मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। एक आड़ू है, एक जगह 7-8 किलोमीटर पे, एक बेताब वैली है जो थोड़ा सा वैली से थोड़ा और आगे वॉकिंग जाते हैं, एक फ्लावर्स का एरिया है, और चौथा है बाईसरान था। बाकी सब तीनों जगह पे रोड कनेक्टिविटी है, यानी रोड कनेक्टिविटी भी है। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो रीइंफोर्समेंट और रिएक्शन जो फोर्सेज का है दैट इज विद अ फास्टर पेस। तो दे डिलिबरेटली डिड नॉट चूज दोज प्लेसेस। बाईसरान को उन्होंने इसलिए चूज किया कि 5 किलोमीटर्स वॉकिंग रास्ता था, पोनी पोर्टर जा सकते हैं या वॉकिंग जा सकते हैं। उनको पता था कि यहाँ टूरिस्ट जब आएगा ना तो वो ट्रैप्ड रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द डिस्टेंस एंड आल्सो द रिएक्शन टाइम। और CRP का नियरेस्ट जो उनका कैंप था वो पहलगाम वैली के अंदर था। और ये जो जगह बाईसरान है, ये जो दक्षिण पहाड़ी से थोड़ा सा अगर साउथ वाला पार्ट है उस ढलान पे है, यानी उसके ऊपर टोटल जंगल है, पहाड़ी है, और उस चीज़ को उन्होंने कई दिन ऑब्जर्व किया है, मतलब प्रॉपर रेकी किया है। और जब इनको टारगेट किया है उस दिन ब्रूटल किलिंग ऑन 22 अप्रैल, अब वो तुरंत क्यों नहीं हाथ में आए हैं? उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ से उनको इस्केप करने का बड़ा क्लियर रूट मिलता है, और वो रूट पूरी पीर पंजाल का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको पकड़ा है उन्होंने। और वो पहाड़ी साउथ ऑफ पीर पंजाल भी आती है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल आती है। अगर साउथ आती है तो डोडा बडरवा किश्तवाड़ की तरफ आते हैं, और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो वो रिज जकूरा त्राल वाली गंदरबल की पहाड़ियाँ हैं जो जाती हैं, और वो पूरे रूट से वाकिफ़ हैं। वो जो ग्रुप है they are totally familiar in guerrilla tactics in the complete पीर पंजाल एरिया। तो जब आपने सुना इस किस्से के बारे में कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, डिड यू थिंक दैट दिस वाज अ सॉफ्ट बेली जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैप आउट नहीं किया था कि ऐसे हो सकता है? देखिए, ये तो जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तो मुझको भी इस बात पे एक हैरानी हुई। मुझे हैरानी इस पे तो नहीं हुई कि हम every nook and corner we are not able to protect the tourists, that I am very sure, because length and breadth of the country have been attacked by them. Even in दिल्ली में हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब बात आई उसकी कि ठीक है आप कि अगर हम लोग बाईसरान जैसी फ्लॉकिंग टूरिस्ट प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैपिंग पे नहीं रखे तो कम से कम वहाँ जाना हम रोक सकते थे, जाने पर कुछ एक चेक लगा सकते थे, क्योंकि वहाँ जाके हम फिजिकली देख तो पा नहीं रहे हैं। यहाँ पर बात यही उठती है कि कितना चेक करो, कितना वही बात है। ये दोनों एक तर्क की बात है, मतलब अगर आप थ्योरेटिकली कहें बॉर्डर किया हुआ है आपने, दोनों ने, आपने यू हैव वर्कड इन दैट बॉर्डर,
मैं आप दोनों से बिफोर आई गेट इनटू इट, आई एम सॉरी जी, आई एम इंटरप्टिंग, लेकिन एक बात ज़रूर आई वांट टू ब्रिंग राइट एट द बिगिनिंग ऑफ इट, सो दैट we understand the difficulties of the BSF which works in that area. वो BSF का जो जवान था PK साहू, जो पकड़ा गया by पाकिस्तान और जो वहाँ he was taken, and the fact that we were able to bring him back. We need a little bit of clarity कि ये ऐसे क्यों होता है? Why did he get caught? In the sense, is it difficult कि इस तरफ उस तरफ? मैं जा चुकी हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आप मुझे बता सकें. मैं बताता हूँ, बट बिफोर दैट एक पॉइंट जो पहलगाम के बारे में, इफ़ यू हैव सीन अ रिपोर्ट इन द प्रिंट, देयर वाज अ रिपोर्ट दैट अ मैक्सर टेक्नोलॉजीज करके एक यूएस की फर्म है विच सेल्स सैटेलाइट इमेजरीज. 11 मार्च को बलूचिस्तान में ट्रेन के ऊपर हमला हुआ है और 12, 13, 14 ऑनवर्ड्स पहलगाम के सैटेलाइट इमेजरी की डिमांड सडनली बढ़ गई है. सो दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो हैज टू बी कनेक्टेड. ठीक है के जी वहाँ पर उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रखी और उसके बारे में एरिया के बारे में रिसर्च किया. नाउ कमिंग टू पीके शाह, तो ये जो थे ट्रुप्स चेंज ओवर हो रहे थे और ये नए वहाँ पहुँचे थे और इनको एरिया की पहली चीज़ तो पूरी फेमिलराइजेशन नहीं थी. दूसरी चीज़, जिस एरिया से वो स्ट्रे किया, लाइन ऑफ साइट पे पिलर्स होते हैं. तो अगर बॉर्डर स्ट्रेट है तो पिलर्स दूर दूर होंगे. ओके. तो जिस एरिया से ये क्रॉस किया उस एरिया में पिलर्स नज़दीक नहीं थे, तो वो वहाँ पे दूर थे, तो ये पहचान नहीं सका. और दोपहर का दिन, गर्मी, 40-45 का टेम्परेचर, तो और ये इनकी पूरे 6-8 घंटे की ड्यूटी, 4-5 लोग आपस में एक दूसरे लाइन ऑफ साइट में होंगे, पर ये वहाँ पर जो किसान काम कर रहे होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये रेस्ट की जगह ढूंढने लगा. वो रेस्ट की जगह पेड़ के नीचे वो पेड़ ही सिंस ही डिडंट नो, तो वो पेड़ पाकिस्तान में था, मे बी 5-7 गज ही रहा होगा, बट वो तो था, वायलेशन तो हो गई. तो ऐसी सरकमस्टांस में और ऐसा हो जाता है. सिविलियंस जो वहाँ काम करते हैं, कैटल है, वो स्ट्रे कर जाते हैं कई दफ़ा उनको, हालांकि वो तो ये तो लड़का अनफेमिलियर था, तो ये पॉसिबिलिटी है. और रिकवर हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है. आई वॉज कॉन्फिडेंट क्योंकि पहले दिन ही इन्होंने इसकी फ़ोटो टांग दी थी, छाप दी थी. ब्लाइंड फोल्डेड, इट वाज हॉरिबल. करेक्ट. बट देन एवरीबडी थॉट कि हे भगवान, ये तो अब वो अभिनंदन वाला किस्सा हो जाएगा. नहीं, वो तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इसको छोड़ देंगे, क्योंकि एक दफ़ा फ़ोटो छापने के बाद अगर वो कुछ करते तो इट वुड हैव बीन, बहुत बड़ा मसला हो जाना था. तो एंड देन सेकंड थिंग हैपेंड इज कि 3 मई को राजस्थान में, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, शायद जैसलमेर के इलाके में एक हमने पाकिस्तानी रेंजर पकड़ लिया. हाँ, शायद जहाँ भी होगा. हमने एक हीरो बन के घूम रहा था. हाँ. तो वो फिर एडिशनल प्रेशर हो गया. नॉर्मली मैं सांबा में कमांड कर रहा था, तो मेरा एक लड़का इसी तरह से स्ट्रे हो गया था. वो एक हफ्ते बाद, क्योंकि नॉर्मल पूछताछ तो वो करते ही हैं, अपने हेडक्वार्टर में ले जाएंगे, पूछताछ करेंगे, फिर वापस भेजेंगे. टॉर्चर करते? टॉर्चर तो नहीं किया था उसको, जो मेरा लड़का था उसको तो टॉर्चर नहीं, पर पूछताछ की थी उससे. तो नॉर्मल कोर्स में एक हफ्ते में आ जाना चाहिए था इसको, बट पहलगाम हो गया, फिर ये टेंशन हो गई, तो इस वजह से ये इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा. तो मुझे ध्यान आता है, आई इनफैक्ट रोट अ पीस ऑन वन ऑफ द पोर्टल्स रिसेंटली, कल ही छपा है वो, दैट वी नीड टू रिवाइव द गाइडलाइंस फॉर बॉर्डर गार्डिंग अथॉरिटीज ऑन द लाइन्स. रिवाइव तो मतलब जब बने थे तो उस समय स्टेट्स थे, स्टेट्स और स्टेट पुलिस, आर्म पुलिस वाज डिफेंडिंग द बॉर्डर्स और प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स. तो 60 में हुए थे. तो वो आफ्टर 71 वॉर वो इफेक्टिव नहीं है. तो एक गाइडलाइंस हमें वर्कआउट करनी चाहिए, जैसी बांग्लादेश बॉर्डर पे है. तो उससे ये फिर इनका हमारा इंटरनेशनल रूल्स नहीं होती, इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशंस वगैरह हैं, तो पर वो
फॉलो होते हैं नहीं होते, मतलब जेनेवा कन्वेंशन से इसके टॉर्चर नहीं करोगे, हाँ. है ना, तो ये तो चला गया, तो वो रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स के बारे हाँ, में एक थोड़ा ग्रे एरिया. हाँ, तो हम अगर बातचीत हो जाती लोकल लेवल पे, बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि टेंशन नहीं थी, तो फिर वो जल्दी आ जाता. तो गाइडलाइंस हैं बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, वो तो पोरस बॉर्डर है काफी, बहुत पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ पे एक्सटेंसिव गाइडलाइंस हैं. उसके बाद 2011 में एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान हैज आल्सो बीन साइंड, प्लान ही बोलते हैं ना, प्लान बिटवीन द टू डीजीज. उसमें एलॉबरेट प्रोसीजर है, एलॉबरेट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी इंटरेक्शन काउंटर पार्ट से कैसे होएगी. तो अगर वो एक आ जाए, गवर्नमेंट आफ्टर थिंग्स सेटल डाउन may consider arriving at a similar kind of guideline. You retired as additional DG of हाँ जी, BSF. हाँ जी, हाँ जी. तो आपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ इंटरेक्शन ऐसे कुछ किया था? हाँ किए हैं. क्या किया, कैसे होता हमने है? जैसे मैं तो सांबा में था, तो वो उसको डिस्प्यूटेड बॉर्डर बोलते हैं, तो ऑक्ट्राई पोस्ट है आरएसपुरा में, वहाँ पर हमारी मीटिंग्स हुई हैं 2-3 बारी. मेरे एरिया में बॉर्डर के ऊपर भी बैठ के मीटिंग हुई, तो मीटिंग्स में बड़ा कॉर्डियल है. वी एक्सचेंज आर इश्यूज, और वो अपने इश्यूज बताते हैं और नॉर्मली सॉर्ट आउट हो जाते हैं. ऐसी कोई अग्रेसिवनेस नहीं होती है, और अच्छी तरह से बात होती है. पर जैसे जब ऑपरेशन पराक्रम के दौरान, या फिर बालाकोट, या फिर पोस्ट उरी, उस वक्त सब हाइटन टेंशन्स होती हैं, तब क्या होता है? तब नहीं होती जब बात ही नहीं होती. हाँ, तब यही रीजन ये रहा होगा ना इसका. अच्छा. इसको डिले हाँ, ये तो एक दिन बाद हुआ है पहलगाम के. एक दिन बाद हुआ. अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी नहीं था. हुआ भी नहीं था. तो पर टेंशनें बढ़ गई थी, बिकॉज इट वाज अनाउंस्ड दैट विल टेक सम एक्शन. तो वो लोग भी कॉशियस हो गए होंगे. हमारे लोग बॉर्डर मीटिंग्स की, फ्लैग मीटिंग्स की कोशिश कर रहे थे, तो आई एम नॉट अवेयर कि हो पाई कि नहीं हो पाई, बट मुश्किल हुई होंगी. तो ऑप पराक्रम वगैरह के टाइम भी ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती थी. उससे पहले ऑप पराक्रम के शुरू के टाइम में मैं था वहाँ पे, तो कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी. अच्छा. हम रेकी कर रहे थे, हमारी फौज खाकी में डाल के रेकी कर रही थी, बट उनसे कोई इंटरेक्शन सब बंद हो गई थी. उससे पहले इंटरेक्शनें होती थी. मैं 3-4 बार मिला हूँ. एक सेक्टर लेवल की मीटिंग्स हुई. मेरे लेवल, उस टाइम मैं कमांडेंट था. पंजाब की राजस्थान? जम्मू वाज डिस्प्यूट. तो पंजाब में तो रेगुलर होती थी. हाँ. इट्स अ 6 मंथली सेटअप सेक्टर लेवल पे. तो जम्मू में बहुत हेजी इंस्ट्रक्शंस थे, बट व्हेन एवर रिक्वायर्ड वी कुड. जम्मू में एक टेलीफोन लाइन थी विद देम, अब है या नहीं पता नहीं मुझे, बट उस समय एक टेलीफोन लाइन थी. वी कुड टॉक विद देम एंड रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग और सॉर्ट आउट एनी स्मॉलर इशू. वो होता था. तो इंटरेक्शन उस समय तो कॉर्डियल होते थे, नॉर्मल टाइम में कॉर्डियल होते होंगे. अभी जो आफ्टर दिस हैज हैपेंड, और जब ड्रोन्स जा रही हैं, हमारे मिसाइल अटैक्स हुए हैं, ऑपरेशन पर सिंदूर हैज़ नॉट बीन कॉल्ड ऑफ, डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल स्टिल ट्राई टू सेंड इन्फिल्ट्रेशन एंड सेंड पीपल, मिलिटेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर, या अभी थोड़ी देर रुकेंगे वो? To my mind, they will still send. Abhi bhi? They may take a pause. There may be a very temporary pause, because there is a little difference in Pakistan side. जिस रिजीम की हम लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री हुई या वहाँ की सरकार हुई, एक चीज़ बड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं, जो रेडिकल एलिमेंट हैं, जो कि प्रॉपर टेररिज्म का तंजीम बना के भारत के अंदर ट्रेन करके टेररिस्ट भेज रहे हैं, ये उन्हीं के ज़रा निगरानी में चलते हैं. बात तो सही है, लेकिन ये कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं. और जो ये ड्रोन की बात जैसे हम लोगों ने चर्चा करी, ये राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, यानी ज़्यादातर राजौरी पुंछ का एरिया से लेके पूरा आपके राजस्थान तक के पैटर्न है. जैसलमेर तो अमृतसर तो इसका हब है. तो ये पूरा जो ट्रांस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स भेजने के लिए जैसे चर्चा हुई हम लोगों की, कि जिसमें नारकोटिक्स भी है, पैसा भी है, पिस्टल है, वेपन है, एक्सप्लोसिव आईडी है, यही मेनली आता है. तो एक ड्रोन की जैसे चर्चा हुई कि ये ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो उन्होंने भेजे, उसमें अटैकिंग ड्रोन भी थे, जो कि सेल्फ एक्सप्लोजन कैपेबिलिटी थी, कामिकाजी ड्रोन, बिल्कुल, जो कि सिविलियन एरिया में या आर्मी के असेट्स पे जो जाएगा जैसे ही आएगा. एक वो कैटेगरी है.
अभी जो पास हुआ है इसमें शायद उस कैटेगरी का ड्रोन यूज नहीं करेंगे, ये एक्सप्लोरेटरी ड्रोन यूज करेंगे। और जो लॉजिस्टिक्स है, जैसे मान लीजिए इनके जो एलिमेंट ऑलरेडी इंडिया में आ गए हैं, जो पीओके में कश्मीर के अंदर इनके ऑलरेडी जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, उनको तो लॉजिस्टिक्स चाहिए ना, वो तो आर्म अम्यूनिशन उनको चाहिए, उनको कौन सप्लाई करेगा। तो जो लॉन्चिंग पैड पे खाली इन्फिल्ट्रेशन का ही लॉन्चिंग पैड नहीं है, ये ड्रोन का भी लॉन्चिंग पैड है। तो ऑल अलोंग एलओसी इन्होंने ड्रोन के लॉन्चिंग पैड बना रखे हैं, और लॉन्चिंग पैड वो कंबाइंड हैं। जैश भी वहीं से लॉन्च कर रहा है, लश्कर भी कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन भी कर रहा है, यानी तीनों का ठेका ले लिया एक लॉन्चिंग पैड कमांडर ने। तीनों को लॉजिस्टिक्स वो ले लेगा। जैसे कमांडर बोले तो कौन? कमांडर जैसे इन्होंने जो डेजिग्नेट किए हैं, हाँ, ये सारे टेररिस्ट है कि वो फौजी है कि टेररिस्ट है, और आईएसआई के लोग हैं। जैसे कि 4 लॉन्चिंग पैड का एक उन्होंने कैप्टन या मेजर नियुक्त कर दिया, ये एक किसी कर्नल के तहत चल रहा है, सुपरविजन आईएसआई का है प्रॉपर। तो आजकल ये पूरा पूल करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है ना, कई शहरों का माल ट्रक में डालेगी और मुख्तलिफ जगह उतारती रहेगी। तो एक ही लॉन्चिंग पैड कई तंजीमों का सामान लॉन्च कर रहा है। तो मेरा ये कहना है, मेरी जो समझ है कि इन्फिल्ट्रेशन और जो टेररिज्म से रिलेटेड सप्लाईज हैं, सपोर्ट्स हैं, वो एक पास के बाद जारी रखने की कोशिश करेंगे। देखने वाली खाली बात यह है कि हमारी किस वार्निंग को वो वार्निंग मान रहे हैं। हमारी चेतावनी बड़ी क्लियर है कि इस तरह का कोई भी एक्शन होगा तो हम स्टेट एक्शन मानेंगे। हम आपके ज़मीन से होने वाले इस तरह के किसी भी अटैक को, जो कि भारत में होगा और वो पाकिस्तान के ज़मीन से हुआ है, तो टेररिस्ट किए हैं या पाकिस्तान, एक ही बात हमारे लिए, ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। अब ये समुद्र मंथन उनके यहाँ चल रहा होगा, उनके माइंड में बात चल रही होगी कि भारत की इस चेतावनी कितनी गहराई तक है, और भारत इस चेतावनी को कितना मैटर करता है, मीन करता है, मतलब आई मीन इट इफ आई से, वो कितना डिसोसिएट करेंगे, कितना ग्रे एरिया रखेंगे, इस पे मेरी समझ से उनकी सोच समझ चल रही होगी पाकिस्तान में। सूद साहब, ये जो एंटी ड्रोन मेजर्स, मैं ड्रोन पे ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि वही आई थिंक पब्लिक इमेजिनेशन में है, तो इनकी जो जैमिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, आर्मी भी कर रही है और ये इनका यूनिफाइड कमांड भी कर रहा है, बीएसएफ भी उसमें इन्वॉल्व है। तो टेररिस्ट जो है वो एक यूनिफाइड कमांड है, तो सारे ये चाहे जेईएम हो, एलईटी हो या फौज हो उनकी, वो सब एक ही जगह से कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो सिर्फ यूनिफॉर्म फौजी है, राइट? सो हम लोग कैसे करते हैं, इन द सेंस दैट बीएसएफ अलग ऑपरेशंस कर रहा है, फौज, आर्मी अलग, एयरफोर्स अलग, नेवी अलग, कैसे कर रहे हैं हम लोग? नहीं, पीस टाइम में तो बीएसएफ है, वहाँ पर बीएसएफ करती है, जो कुछ भी इनके पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके बीएसएफ करती है। और डेप्थ में और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो हमसे मिस हो जाते हैं, तो फौज या एयरफोर्स वाले कर लेते हैं पीस टाइम में। अभी जो सिंदूर हुआ, इसमें फिर सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मतलब वो वॉर टाइम सिचुएशन जैसे है, दो वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड वॉर, पर जैसे वॉर टाइम में एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है, वो चल रहा है। वॉर टाइम में बीएसएफ हैज अ वॉर टाइम रोल, तो वो रोल में बीएसएफ कम्स अंडर द आर्मी कमांड। आई सी। एंड वी गेट इंटेग्रेटेड, वी फाइट लाइक इन्फेंट्री ट्रूप्स, उनकी यूनिट्स के साथ में हो जाते हैं, एंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूल हो जाते हैं, और वो सीमलेस होता है, बिल्कुल सीमलेस हो जाता है, बिकॉज वी प्रैक्टिस दैट ड्यूरिंग पीस टाइम। ओके। Like I said, I was at Samba, तो I was aware of what my wartime role is. मुझे कहाँ जाके deploy होना है, तो we carried out those rehearsals. We were involved in sand model discussions and so on and so forth. Okay. General VK was the brigade commander then at Samba. तो peacetime coordination होती है मोस्टली जगहों पे. It's a different matter that coordination can be better also, but because there's always a scope for improvement everywhere. But my experience has been very good of coordination with the Fauj. With the Fauj. Okay, let me come to your story. उसके बाद हम वापस आ जाएंगे the current situation. तो आप बताइए आपकी जो जिंदगी थी वहाँ पे in जम्मू कश्मीर. Based on that, a film has been made on what you did to capture Ghazi Baba. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. Who was he? What happened?
and what was going through your mind during that capture of Ghazi Baba? एक शॉर्ट बैकग्राउंड उसका मैं देता हूँ कि बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि 1979 में रशियन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में क्या आ गई, पाकिस्तान की लॉटरी खुल गई। मतलब ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन ये पिछले 40 साल का पूरा हमारे एरिया का ये एक कुंजी खोलती है एक लाइन कि सोवियत रूस की फोर्सेज अगर 79 में न आई होती तो पाकिस्तान की लॉटरी नहीं खुलती। पेट्रो डॉलर और अमेरिका के जो आशीर्वाद उसके ऊपर है, इतना नहीं हुआ होता। उस फेज़ में ये जो मौलाना मसूद अज़हर का डिप्टी गाज़ी बाबा, जो कि बहावलपुर से जिसने पूरी अपनी सिखलाई ली थी, तो ये तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉपर इसने लड़ाई लड़ी थी। और ऑब्वियसली जब अफ़गानिस्तान से फोर्सेज चली गई तो इनको कहाँ आना था, वो तो 1989-90 में कश्मीर का बिल्कुल बच चुका था, तो इनको LOC क्रॉस करके इंडिया में आना था। मौलाना मसूद अज़हर की जेल जाने के बाद रफली 93-94 गाज़ी बाबा को इंडियन टेरिटरी में LOC के तरफ से भेजा गया, क्योंकि हरकतुल मुजाहिदीन की पूरी कमांड किसी को संभालनी थी। कश्मीर उस समय वहाँ के टेररिज्म ग्रो पूरी इस समय एक कह लीजिए कि स्पीड में आ चुका था। उस सिलसिले में ये क्रॉस करता है और इसके एक ही मुहिम होता है मौलाना मसूद अज़हर को इंडियन जेल से छुड़ाना। इसकी तमाम कोशिशें भी होती हैं। 1994 टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 सेम आरू पहलगांव से अगस्त 1995 में 6 टूरिस्ट की किडनैपिंग। उसके बाद आपको पता है IC 814 घटना पर हम सीधे आ जाते हैं और सन 2000 पे आ जाते हैं। 2000 में हरकतुल मुजाहिदीन का रीनेम करके कंप्लीट जैश मोहम्मद की स्थापना करता है बहावलपुर में मौलाना मसूद अज़हर। इधर गाज़ी बाबा जो सेंसेशनल अटैक में सन 2000 में 2 अटैक करता है। अप्रैल 2000 में 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी कैंट सुसाइड अटैक, followed by 1 suicide attack again in the same winter, and his last but one जो आपका 1 अक्टूबर 2001 को JNK असेंबली पर अटैक श्रीनगर सिटी में दिन दहाड़े, and his final attack is 13 December 2001 Indian Parliament attack. After that he becomes proclaimed offender, Osama bin Laden of India, properly ordered by the court of law. तो उस दौरान हमारा डिप्लॉयमेंट BSF उस समय हेल्म ऑफ अफेयर पे थी, श्रीनगर में पूरे वैली में थी, और उस समय सेकंड फेज में मेरा 3 साल हो चुका था। तो 17 मंथ तक ये एब्सकॉन्डर रहा, 17 महीने बाद मारा गया तब, जबकि अगस्त 2003 में श्रीनगर सिटी में इसने अपने अड्डे शिफ्ट कर लिए थे और पिछले 18 महीने से किलिंग स्प्री पे था। ये कॉप किलिंग, श्रीनगर सिटी की मैक्सिमम कॉप किलिंग की घटना 2002-2003 है, 1, 2 और 3। और प्रधानमंत्री महोदय के विजिट के दौरान इसने सेंसेशनल अटैक लाल चौक में प्लान किया, ग्रीनवे होटल पे, जबकि प्रधानमंत्री महोदय उस दिन खुद ही श्रीनगर में थे, और 28 को जब उन्हें निकलना था वहाँ से, उस दिन इसने दूसरा अटैक प्लान किया, जो अटैक इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारी बटालियन की मुस्तैद पेट्रोल पार्टी ने उस जिंदा पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ा जो गाज़ी बाबा का डिप्टी चीफ था, और पकड़ने के बाद से शुरू होती है हमारी इंट्रोगेशन की कहानी, जो कि 36 घंटे और चलती है। और हम लोग 30 तारीख की रात को 3:30 बजे श्रीनगर के डाउनटाउन में ही एक 3rd फ्लोर पे एक मकान के अंदर, जहां इसका गुप्त तहखाना था, इसने एक सीक्रेट चैम्बर डिज़ाइन कर रखा था पूरा साइंटिफिकली, जिसमें क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस था। मॉनिटर पे हमको देख रहा था 3rd फ्लोर पे, और जिस रूम में सोया था उसका पैरेलल चैम्बर के अंदर ये और दूसरा इसका दोस्त राशिद भाई पाकिस्तानी, बोथ वर वाचिंग अस ऑन द स्क्रीन मॉनिटर पे। जब हम लोगों ने घर को घेर के अंदर घुसने की कोशिश की, 3:45 के करीब हमने रेड किया, और उस रेड में टॉप फ्लोर पे जाने के बाद इसके सीक्रेट चैम्बर को ब्रेक करते ही हमारा इनकाउंटर हुआ, क्योंकि हमने तो बिल्कुल मुंह में ही हाथ डाल दिया। हमारी एक शहादत हुई और करीब 5-6 लोग इंजर्ड हुए हमारी टीम के, और इसको आमने सामने के इनकाउंटर में मार दिया गया। दोनों को मारा हम लोगों ने। एक जो पाकिस्तानी जिंदा हमारे पास और इसका था, और जैश मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर को 30 अगस्त 2003 को BSF ने श्रीनगर सिटी के अंदर इस इनकाउंटर में मार गिराया। तो ये था ये ऑपरेशन, जिसमें मुझे बड़ी सीवियर इंजरीज़ हुई थी, लंबा ट्रीटमेंट वगैरह चला। क्या इंजरीज थी? मेरा राइट हैंड शेटर्ड हो गया था कम्प्लीटली, और एक ग्लूटल रीजन, स्टमक में गोली लग गई, वो अंदर ही है। किसने मारा था आपको? गाज़ी बाबा का शॉट था, आमने सामने उसने? बिल्कुल, ये जैसे रूम में हम बैठे हैं, इसका 1.5 गुना बड़ा। अभी वे आपका हाथ सीधा नहीं हो सकता? नहीं, हाथ तो ये है,
और पेट के अंदर एक गोली है, अभी अंदर ही है, यूरिन ब्लड के ऊपर ही है मेरे। दरवाजा खुला और सामने था रूम हम खुले, रूम बिल्कुल क्लियर था। रूम को देख के ऐसा कुछ लगता नहीं था कि रूम में कोई हो रहा होगा। कोई प्रॉपर्टी रूम में नहीं थी, कोई लेफ्ट ओवर सामान नहीं था। बट एक बड़ा डाउटफुल शीशा था जो वॉल में फिटेड था, जो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा था। तो हमने उस कारपेंटर को पकड़ लिया था उस रात जिसने डिज़ाइन किया था चैम्बर। उसी पाकिस्तानी के इंट्रोगेशन की बुनियाद पर हम उस कारपेंटर तक पहुंचे थे। इसी कोकरनाग अनंतनाग से लेके आए थे। तो उसने शीशे पे इशारा किया। इशारा करने के बाद इनकाउंटर के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं था वहाँ। या तो हम ब्रेक करके आमने सामने का फायर करते, अगर हम विड्रॉ भी होते तो हम मारे जाते। क्यों? क्योंकि अब हम तो पूरे के पूरे कमरे के अंदर आ गए थे। 3 लोग सीढ़ी में थे, 4 या 5 लोग फ्लोर पे थे। एकदम उसके हाइट को हम देख रहे हैं, लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि वो चैम्बर के पीछे सीसीटीवी पर हमको मॉनिटर कर रहा है। ये तब नहीं पता लगा हमको। ये तो पूरा हाइट ब्रेक करने के बाद, मकान गिराने के बाद जो सामान रिकवर हुआ उसमें उसके सारे, जैसे ओबीएल ने किया था, बिल्कुल कंप्लीट चीज़ उसकी रिकवर हुई, जो कि मीडिया में डिस्प्ले हुई। प्रॉपरला लाइव मीडिया ब्रीफिंग के अंदर वो है। और वो दोनों ही मारे गए। उसके बाद करीब 13 साल तक जैश एकदम ठंडी रही। नहीं, जब आपने दरवाजा खोला या वो शीशा तोड़ा जी, तो वहाँ कमरे के अंदर 2 लोग थे। शीशा तोड़ने के बाद तो कुछ सिचुएशन तोड़ते ही हमारे पर फायर आया। ग्लास सिर्फ एक स्क्रीन था हमारे और उसके बीच एक पर्दा था, वो जो क्योंकि वो ये समझ के चल रहा था कि ड्रेसिंग मिरर समझ के ये लोग चले जाएंगे। उसके नीचे कुछ ड्रेसिंग के सामान भी रखे थे। हमारे एक ऑफिसर ने बाल भी ठीक किया, उसको आइडिया ही नहीं लगा कि इसके पीछे गाजी वहाँ बैठा हुआ है। और जहाँ शीशा खोला हमने, हमारा क्या ज़बरदस्त स्वागत हुआ। लेकिन ये रहा कि मतलब फिर तो उसमें करो या मरो वाली सिचुएशन थी। एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट ऑपरेशन की एक सिंगल सिविलियन को गोली नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ हमने इन दोनों को मारा। उसके पास क्या वेपनरी थी अंदर? उसके पास एंटी टैंक ग्रेनेड्स तक थे उस कमरे में, उसके हाइड में अंदर। सीजर मेमो में जो एक एक चीज़ नोट है, जिसमें क्लासिको सीरीज की राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, उसके बाद तो फिर क्यों नहीं फायर किया उसने रॉकेट? नहीं, उसने राइफल तो फायर की नहीं, रॉकेट लॉन्चर वगैरह जब सब वो तो एक स्टोर का पार्ट था, क्योंकि एक टाइम तो एक ही वेपन चला सकता था। तो उस कमरे में उसके पास रॉकेट लॉन्चर वगैरह नहीं थे? उसका जो हाइड था, जिस कमरे में वो छुपा था, उसके साथ पैरेलल स्टोर था। क्योंकि मकान जब तोड़ा गया तो उसके पीछे जो और सेगमेंट निकले, उसके अंदर ये सारे सामान निकले। तो उसके पास अंदर राइफल था। राइफल और ग्रेनेड नहीं था। ग्रेनेड उसने खूब चलाए। एक ग्रेनेड का छर्रा मुझे फिंगर में लगा भी। और हमारे 5 लोग तो ग्रेनेड इंजरी ही 5 को हुई, 5 लड़कों को। क्योंकि उस छोटा सा रूम था, इतना स्प्लिंटर उसका निकला। एक जवान हमारा शहीद हो गया, बलवीर सिंह। और बुलेट इंजरीज मैक्सिमम मुझे हुई। और एक बंगाली लड़का था नीलकमल दास, उसको 2 गोली लगी थी। तो जब आप ऐसे ऑपरेशन में जाते हैं, यू आर वेल अवेयर कि ये किल मिशन है। यस मतलब कैप्चर लाइव तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा ना। तो ये आप किल मिशन पे जब जाते हैं, यू नो कि ये खूंखार टेररिस्ट दूसरी तरफ है, तो मतलब आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं कि इसको जिंदा या मुर्दा बस मारना है? एक्चुअली जो उसका डिप्टी चीफ पाकिस्तानी था, वो ऑलरेडी हमारे कब्जे में था। उसके इंट्रोगेशन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी हमारी टीम को। और उसके ठीक एक दिन पहले सुसाइड अटैक हुआ था लाल चौक में। और ये चीज़ बड़ी कॉमन थी उसमें श्रीनगर में। यानी जवानों के डेली रूटीन का पार्ट था बीएसएफ का कि वो इस तरह के ऑपरेशन डेली हैंडल कर रही है, डे इन डे नाइट। और उसमें फॉरेन टेररिस्ट फाइटर बहुत हुआ करते थे। तो एफटीएफ से भी हमारा इनकाउंटर खूब होता था। तो जब डिप्टी चीफ था और गाजी बाबा की सुरागरसी बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट कर रही थी कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इनकाउंटर होगा, तो जवानों को सिर्फ एक लाइन। बट एक बड़ी अच्छी बात है कि उनका जो काउंटर रिस्पांस है, दे टेक एट इज एन अपॉर्चुनिटी। कि गाजी बाबा रोज़ रोज़ नहीं मिलता। 17 महीने की मेहनत थी, पूरी दुनिया पागल थी उसे पकड़ने के लिए। तो ये तो अरे गाजी बाबा मिल जाएगा, ये उसका डिप्टी चीफ है। और एक बार और किसी फोर्सेज के कार्डन से भाग भी चुका था वो। वॉज मोस्ट वांटेड। अदरवाइज देखिए, हम सवेरे का इंतजार करते, उस घर में नहीं घुसते। हमने 340 करीब रेड किया रात के अंधेरे में, 3:45 बजे। सनलाइट में करते, सनलाइट में इनकाउंटर सक्सेसफुल नहीं होता। मारा तो जाता हो, लेकिन हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पास इतना सामान था लड़ने के लिए। 3rd फ्लोर टॉप फ्लोर पे वो हाइड बना के बैठा हुआ था, उन खिड़कियों से फायर करता। हम लोग तो डेफिनेटली ऐसे कार्डन में 2 टियर कार्डन था, जवानों की संख्या काफ़ी थी, हमारी कैजुअलिटी हो सकती थी। रेडिंग टीम तो पक्का कैजुअलिटी होती जो अंदर जाती है। तो हमारा जो एग्रेसिव अप्रोच था ना, वो इस पर बड़ी चर्चा चली कि क्या 3:45 बजे जाके समझदारी किया।
7:45 बजे जाते सवेरे। मेरा ये कहना था कि हम 3:45 बजे जा गए तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो अपने चैम्बर में हमको मिल गया लॉक्ड। यानी जो हमारा इनकाउंटर हुआ ना उस कमरे तक ही हुआ, उस कमरे के अंदर ही जो होना था हो गया। एंड वी वर सक्सेसफुल इन किलिंग। कॉन्सिक्वेंस में तो लगना था इतना, बट द प्राइस वी पेड दैट इज वेरी लेस प्राइस कंसिडरिंग द शेप एंड साइज ऑफ द गाजीपुर। When you got hit this badly, तो उस वक्त आपको क्या लगा, मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, कि कैसे लगा? बेटा मुझे हिट तो खाली राइट हैंड का पता लगा, बाकी बॉडी के गोलियों का मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। अच्छा। जब तक ऑपरेशन थिएटर में क्लोथ काट के डॉक्टर ने बॉडी नहीं एग्जामिन किया, तब वो बताने लगे तुम्हारे तो पेट में गोली है, परफोरेशन हो रहा है, वी हैव टू ऑपरेट, गोली अंदर ही पड़ी है, चेस्ट में है, दाहिने पैर में है। हालांकि चेस्ट और दाहिने पैर का मेरे फिजिकल कैपेसिटी पर असर नहीं पड़ा, कैपेसिटी का असर पड़ा दाहिने हाथ का और पेट का, क्योंकि पेट वाले ने स्पाइनल कॉर्ड को भी ब्रूज कर दिया, तो राइट लेग मेरा पैरालिटिक हो गया था। तो अब ये फीलिंग तो आई कि गोली लग गई, बट जो ये बार बार मैं रिकॉल करता हूँ क्या मैं सोचा, पहला सोच दिमाग में होती है, अरे फेलियर तो नहीं हो गया, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम चौपट तो नहीं हो गया। दूसरा फीलिंग आती है कि ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं हो गई कि लोग कल को हमें एक दूसरे नज़र से देखेंगे। थर्ड की क्या काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, बाकी कुछ नहीं याद आता मैडम, कुछ नहीं याद आता। ये याद आता ये काम हो गया क्या। और नीचे आके जो पहला मेरा रिएक्शन था वो यही था कि अंदर टेररिस्ट हैं, बलबीर को गोली लग गई है, घर को घेर के रखना, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो, मुझे हॉस्पिटल भेजो। ये रिएक्शन था मेरा। और एक फाइनल सक्सेस स्टोरी रही, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रशंसा करना इस ऑपरेशन पे, और 17 महीने के अंदर गाजी बाबा को मार देना, 13 साल तक जैश ए मोहम्मद से मुक्त रखना भारत को, जब तक पठानकोट अटैक नहीं हुआ। इस बीच में जैश की कोई घटना नहीं है, जाके 2 जनवरी 16 को पठानकोट अटैक हुआ था। जब भी कोई ऐसा किस्सा आता है ना, चाहे ये गाजी बाबा का मर्डर हो, मर्डर मीन्स टेकिंग आउट, मर्डर तो गलत वर्ड है, बट द किलिंग ऑफ एनकाउंटर, या फिर जब भावलपुर पे जब अटैक हुआ वो बहुत बढ़िया लगा। जब ये सब होता है ना, एक तरफ तो ये है कि हाँ हमारे पार्लियामेंट पे अटैक किया, यू डिजर्व दिस। दूसरा एक पर्सनल भी होता है, जैसे आपका पर्सनल ट्रॉमा है, हमारा भी पर्सनल ट्रॉमा है। हमारा कैमरामैन जो है विक्रम बिष्ट, वो ड्यूटी कर रहा था पार्लियामेंट में उस दिन, दूर था, पास करीब नहीं था, पर वो शूट कर रहा था और बुलेट वहाँ रिकोशे होके, लेंस कैप से रिकोशे होके उसको लगी, और उस वक्त पता नहीं लगा, वो गिर गया और वो बुलेट स्पाइन में अटक गया। और वो उस वक्त एम्बुलेंस वगैरह जो VIPs के लिए थे ना, क्योंकि वो सबको नोबडी न्यू कि इन्होंने ये एंटर कर गए हैं कि नहीं कर गए हैं, तो एम्बुलेंस आने में देर लगी। तो जब देखा कि गिर गया, किसी को पता नहीं कि कहाँ लगी है उसको, तो उन्होंने उठाया, जब उठाया तो वो बुलेट और लॉज हो गया। राइट। अब नोबडी न्यू द प्रोटोकॉल की अगर लगी है तो वहीं रहने दो, ऐसे मत स्ट्रेचर पे लो, स्ट्रेचर पे, पर वो उठा के ले गए और फिर बाकी जगह से तो हटा दिया था बुलेट जो लगी, मतलब वो प्रोसेस, पर वो लॉज था। अब वो 1 साल वो कैमरामैन वाज पैरालाइज्ड, हॉस्पिटल में रहा। आफ्टर वन ईयर वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता था बेचारा, और वो एक दिन जब बाथरूम गया तो वो बुलेट हटा एंड ही डाइड। अच्छा। उस दिन से all of us who remember that day was like, एक दिन तो ये बावलपुर पर अटैक होगा और एक दिन ये गिराया जाएगा, and we have waited। 7 की रात का बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ सबको। हाँ। बहावलपुर का ध्वस्त होना, बहावलपुर से ये हमारे कश्मीर की तकदीर लिखते थे बैठ के लोग। और जिसको आज कह रहे हैं ना हमारी सुबहानअल्लाह मस्जिद गिर गई, और जिसके रिपेयर के लिए अभी, जिसको उसने ओसामा बिन लादेन के फंड से वो मस्जिद बनी थी, कि जिसके लिए इतना चिल्लाते हैं कि इसमें हमारे बच्चे मर गए, लेडीज मर गए। भाई लेडीज बच्चे को बैठने के लिए किसने बोला था उसमें? भाई यू आर इंटायरली pumping and preparing a radical terrorist to attack inside India from that very place. जी। तो that is our target. If they are killed, that is consequence. तो बहावलपुर पे जो ये हुआ ना, ये बहुत शानदार। बहुत से लोग हैं, hundreds of people. I know of people जिन्होंने अकम्पनी किया था मसूद अजहर को छुड़वाते टाइम, IC-814 के बाद छुड़वाते टाइम, जो उनके मन में चली ना वो बात, जब भावलपुर को उसको ढेर किया गया,
उनके मन में देयर वाज अ क्लोजर कि अब फाइनल क्लोजर तो तब होगा जब एक गोली उस बंदे को लगेगी, पर उसके 11 लोग उसके परिवार के मारे गए, उसको वो दर्द महसूस होगा जो हजारों लोगों को, मैं हजार इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फॉर एवरी इंडिविजुअल किल्ड देयर इज एटलीस्ट 15 to 20 फैमिली मेंबर्स। 42 सीआरपी के जवान फरवरी में, 42 लड़के फरवरी 19 में मारे गए। जैश का ही तो हमला था। 42 से कितनी फैमिली कनेक्टेड है, सिर्फ 42 नहीं है, 42 × 6 8 करिए। जिस लोअर मिडिल क्लास से जवान आते हैं उन पे डिपेंडेंसी देखे ना परिवार की। सिंदूर क्यों शब्द है, मतलब हमारे यहाँ विधवा होना, मैरिज एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, ऐसे थोड़ी सिंदूर है। मतलब वो 26 जो मारे गए हैं बैसरान में, तो सिंदूर वर्ड इज वेरी, उन्होंने क्यों मेल को मारा, उन्होंने 26 मेल को ही मारा ना। मेल को मारने के पीछे बहुत बड़ा वजह था। दे नो आवर कल्चर कि ये 26 जो मारे गए हैं ना, ये 26 विधवा पैदा होंगी भारत में। और एक विडो की क्या लाइफ है इस देश में, मतलब एक विडो कैसे अपने को सरवाइव करती है सोसाइटी में। वी आर नॉट वेस्टर्न कंट्री ना, इसीलिए उन्होंने 26 मेल मारे। और बाकी जो संदेश दिया तो दिया ही, जाके मोदी को वो तो जो संदेश दिया वो भी बड़ा एक। सुसब जरा बताइए कि जब ऐसे किस्से होते हैं जहाँ मास मर्डर होता है, जैसे दुबे जी ने कहा कि सीआरपीएफ को मारा और यहाँ पर सिविलियंस को मारा, तो एज कमांडिंग ऑफिसर उस वक्त आप अपने जो जवान हैं आपके साथ, उनको कैसे मोटिवेट करके रखते हैं? जवान को मोटिवेट करना ऐसी स्थिति में कई दफ़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इमोशनली वो चार्ज्ड अप हो जाते हैं। दे वांट रिवेंज, दैट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन of any jawan in that, even commanders, even a person like me would say revenge, but then it has to be properly thought of. जैसे मिस्टर दुबे ने बोला कि गाजी बाबा के लिए 17 महीने की इन्होंने प्रेपरेशन करी, तो वो हमारा एज कमांडर्स हमारा ये काम बनता है टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ काम सिचुएशन और उनसे बात करें, और बात करने के बाद में देन उसको प्रॉपरली प्लान करें, प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट करें। ये ट्रॉमा और ज़्यादा हो जाता है अगर हमारा ही कोई जवान इंजर्ड है या मर गया है, तो जवानों के लिए ये और बड़ा ट्रॉमा होता है। और एक प्रण भी लेते हैं उस वक्त? बिल्कुल, उस समय में शायद फॉर्मली नहीं लेते होंगे, बट इंडिविजुअली कि हम कुछ करेंगे, है ना। हाँ। तो वो होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है उनको मोटिवेट कर, उनको मोटिवेट तो चलिए कंट्रोल करना, उनकी रेज को कंट्रोल करने में वो काफ़ी। बट लाइक दे से रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। एब्सोल्युटली। तो रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, बिकॉज इफ रिवेंज, और फिर सर्टेनिटी भी होती है। अगर आप प्रॉपर प्लान करके रिवेंज लेंगे तो यू आर 99.9% होपफुल ऑफ सक्सेस। अदरवाइज अगर आपने इमीडिएटली कर दिया तो ठीक है, गोलियां चला दी, वो बंदा भाग गया या जो कुछ भी हुआ, सो वो चीज़ है। रिवेंज राइटली सेड इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। प्रॉपर प्लान करिए, वेट करिए, बाइड योर टाइम, सही वक्त पे जब ऑपरेशन में सही वक्त बहुत ज़रूरी होता है। जी। एक ये भी होता है दैट समटाइम्स स्ट्रीट प्लेज अ रोल। जब मैं स्ट्रीट कहती हूँ, पब्लिक ओपिनियन की बात कर रही हूँ। अब वो पब्लिक ओपिनियन में आम आदमी भी होता है और कभी कभी लीडरशिप भी होता है। जैसे नोबडी विल एवर फॉरगेट जब हमारे एक जवान की मुंडी काट के उन्होंने भेज दिया था, राइट? देयर वाज आउटरीच एंड अ पॉलिटिशियन, सुषमा जी सेड कि वो हमारी एक मुंडी काटेंगे तो हम उनकी 10 मुंडी काट के भेजेंगे। किया भी, राइट। पर उस वक्त इट वाज नॉट, वी डिडंट टेल, दैट वाज द थिंग। लेकिन ऐसे किस्से होते हैं, बिल्कुल, कि अगर कुछ ऐसे किया उन्होंने, तो शायद हम उसे एडमिट ना करें, लेकिन करेंगे जरूर, करते हैं जरूर। और मेरे विचार में डिनायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिनायबिलिटी इन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट द वर्ल्ड हैज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमने क्या करा, वी शुड एक्ट इन सच अ मैनर
कि लोगों को पता भी ना लगे, सांप भी मर जाए लाठी भी टूट जाए, वो जो कहावत है वो होना चाहिए. बट देन पब्लिक प्रेशर एज यू सेड. अब 2-1 चैनल्स में मैं गया था तो द एंकर्स इतने एजिटेटेड हैं, इतने हाइपर हैं, एंड देन जनता एक क्राउड में नोएडा में उन्होंने करा था, वहाँ पर क्राउड वो मार डालें, इसको पापड़ी की तरह तोड़ दें और ये वो. तो these things are not a matter of public knowledge. जो strategizing, planning, execution, when to do, how to do, is not, should not be dependent on public opinion. जी, I could understand. क्या होता है कि जब इतने घिनौने तरीके से जब पहलगाम हुआ, it was difficult to control emotions. I get it. आप लोगों की ट्रेनिंग है, right? आपकी ट्रेनिंग है to keep emotions aside, and जो आपका what line you have to take, you are taking it. एक हायरार्की भी होती है. जब आपका कमांडिंग ऑफिसर कहता है नहीं, ये नहीं करना तो नहीं करना, चाहे आपका पर्सनल ओपिनियन जो भी हो. लेकिन आम जनता में that discipline is not there, right? So it becomes an emotive affair. I'm not justifying what the media said or what people say, but I'm just trying to understand कि कहाँ से वो sentiment उभर के आता है कि for once the whole country was completely united कि अब अगर सबक नहीं सिखाएंगे ना तो नहीं रुकेगा, ये सांप हमको डसता रहेगा, तो सांप की मुंडी काटो. It was that. Do you understand that the sentiment, and do you appreciate it, even if you feel कि इस पर action नहीं लेना? पर do you as BSF do you understand कि ये कहाँ से ये sentiment आया है? Actually जो जवान होते हैं, we are talking about the fighting troops. जी. And also public. And also the public. हाँ जी. Public में क्या है कि एक चाहे वो अभी इस समय तो जो जिंदा जनरेशन है वो लगभग 1935-30 के बाद की जनरेशन है जो देख रही है, जो हमारी जो पिछली 2 जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बड़ी जनरेशन है. इन जनरेशन्स ने भारत में पाकिस्तान जो 1989 से कर रहा है ना, 1989-90 के ऑनवर्ड्स जो 35 साल से कर रहा है, ये मोस्ट ऑफ द जनरेशन इज विटनेस टू ऑल दोस थिंग्स. जी. तो एक लार्जर जो ग्रुप है वो देख रहा है. अब जिसने 2005 के बाद की जनरेशन है, उस जनरेशन के पास ये सारी एक्टिविटी मीडिया के थ्रू पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही हैं. ये फर्स्ट सोशल मीडिया वाला वार है. हमारे टाइम में इवन 2003 के इनकाउंटर का भी कोई हमसे कहता है कि आप जब जा रहे थे तो कोई फोटो थी क्या? हमारे पास कोई फोटो नहीं है मैडम, हकीकत में कोई फोटो नहीं है. रिकवरी की एक रात की फ़ोटो है पाकिस्तानी की, और मारने के बाद की फ़ोटो, बाकी कोई फ़ोटो नहीं है. क्योंकि उस समय एक फॉर्मेशन में हम निकल रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, इसका कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाता था, ना तो था, सब कुछ भी नहीं था. तो एक तो पब्लिक जो है, लार्जर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ विटनेसिंग एंड फीलिंग दिस टाइप ऑफ क्राइम्स स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान इन आवर लैंड. और ये 26 टूरिस्ट का मर्डर तो लोगों को हिला दिया है, क्योंकि इसमें आप देखिए नॉर्थ से साउथ तक के लोग थे. ब्रेथ एंड पूरी जो लंबाई चौड़ाई देश की है, हर जगह के लोग थे. जी. और जिसको मारा गया उसमें कोई एक जगह का आदमी नहीं था. जी, अरुणाचल से लेके गुजरात तक. और अब मान लीजिए कि अगर ये मीडिया का जमाना नहीं होता तो ये बताना मुश्किल था कि उसने क्या कहा, उन लोगों ने कैसे मारा. सिर में मारते हुए गोली की फोटो हमारे टाइम में नहीं होती थी. तो उस क्रूएलिटी, वो जो क्रूएलिटी ट्रेवल कर रही है ना, वो लोगों के दिमाग तक जा रही है, और गुस्से का कारण वो है. हाँ, एक तो ये बात हो गई. और ये बर्बरता को एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके पार्लियामेंट में कि टीएफटी को हमने वो बैन हटा दिया, हमने कहा कि इनको हटाओ, इस ऑर्गेनाइजेशन को हटाओ. मतलब आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक है ऑफ दिस. वो टीआरएफ कोई बैन नहीं करेंगे. बैन का तो अब भारत करेगा. वो भारत ने ऑलरेडी इसके लिए मुहिम अपनी शुरू कर दी है. यूनाइटेड नेशन जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जाएगा, इस पे चर्चा होगी, इसके सबूत पेश करेंगे. 26/11 में एक कसाब नहीं मिलता. तो आज तक पाकिस्तान कभी एडमिशन करता कि ये मुरीदके से गया था ग्रुप है. अच्छा, एक सवाल मैंने पूछना, आपने जो कहा था ये कारपेंटर वाली जो बात है, तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो खबरी होते हैं, इन्फॉर्मेंट्स, इनका रोल आज के टेकेंट के ज़माने में जब रेडार्स ये वो सब हैं,
तो ये ह्यूमन एलिमेंट जो है, ह्यूमेंट, इसमें ये कितना रोल करता है? आई रिमेंबर सम इयर्स बैक जब मैं BSF के, आई एम नॉट गोइंग टू से कहाँ पे, पर जब मैं गई थी तो बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में था, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप जितना मर्जी रेडार्स लगा दीजिए, सैटेलाइट लगा दीजिए, पर वो जो ज़मीन पे वो जो दैट जिप्सीज जो होते हैं ना, जब वो बताते हैं कि कहाँ से मूवमेंट हुई है, वो पैरों के निशान देखते हैं ऑन द डेजर्ट। खोजीज कहते पग्गी हाँ। होते हैं, पग्गी पगी, हाँ, क्योंकि पग के निशान। पग के निशान जो हैं, दे नो एग्जैक्टली हाइट वेट ऑफ दैट, क्योंकि वो जो Exactly. पग का जो वेट होता है, मतलब वो कितना Camels गहरा का होता है, कैमल्स का नहीं, मतलब इवन द इंडिविजुअल्स जो वो कहते हैं कि जब वो चल रहे हैं उनको पता है कि ये बच्चे का पैर का निशान था, वुमन का था या मैन का था, Yes. और कितने लोग थे इसमें। इवन खाली ऊंट है तो उसका निशान अलग ऊँट का- पड़ेगा, ऊँट का। लोडेड ऊंट है तो उसका निशान अलग पड़ेगा, हाँ। और उस पर 2 लोग बैठे हैं उसका निशान अलग पड़ेगा। तो ये जो पग्गी होते हैं, राजस्थान की पर्टिकुलरली आप बात कर रही हैं जी, ये दे आर द सन ऑफ द सॉइल्स। इन्होंने पैदाइश से ही ऊंट देखा है और उस पूरे डेजर्ट पे ऊंट के फुटमार्क्स देखे हैं। इन्होंने कोई मशीन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है। मेरा ऊंट खुद 1988 में भाग गया था, पाकिस्तान चला गया था, और मैंने पग्गी को पकड़ा, पग्गी ही जाके पता करके लेके आया, और अगले दिन मीटिंग करके मैंने ऊंट वापस लिया। वो हमारे वार्तालाप में भी है। आपको अपना ऊँट? हाँ, वापस ऊँट लिया मैंने, पाकिस्तान से मीटिंग अपना की। meeting, पहले BSF रात को हमने भेजा, वो आदमी बोला सर एक जूता दे दो और पानी की बोतल। तब बिस्लेरी का पानी तो आया नहीं था, नॉर्मल वाटर बॉटल फौजी होती थी। खंगरिया नाम था। लड़कों ने बोला साहब ऊँट कहाँ गया यही बताएगा। ऊँट हमारे जवान को पटक के और पाकिस्तान की तरफ चला गया। फेंसिंग तब थी नहीं। तो वो आया और अगले दिन 11 बजे लौटा, बोला सर संगरीलो गांव में फलां का ऊँट बंधा हुआ है। मैं ऊँट देख के आ गया, क्योंकि ऊँट के ऊपर मार्क्स होता है BSF में, उसके नंबर लगाते हैं उसके पैर के अपर हिस्से में, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है। तो हमने फिर पाकिस्तान से मीटिंग की, हमने कहा मेरा ऊँट तुम्हारे यहाँ गया। तो अगले दिन आया उनका अफसर, उसने बोला आपने अब तक तो पता भी कर लिया होगा कहाँ गया आपका ऊँट। तो हमने कहा मुझको पता तो है कहाँ गया ऊँट। कहा ठीक है बता दीजिए। नेक्स्ट डे उसने ऊँट खोद के मुझे वापस किया। तब रिलेशनशिप वो थी ना 88-89 में ज्वाइंट पेट्रोलिंग चलती थी। मैं सवाल पूछ रही थी ऑफ कि आपके जवान वापस आए कि नहीं, तो भारतीय फौजी जो है वो अपना ऊँट भी वापस ले आता है। वो हमें ऑर्डर मिला, कमांडेंट ने बोला तुम कैंपस में नहीं घुसोगे जब तक ऊँट नहीं आ जाएगा, बिकॉज ऊँट इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। कैमल इज दी, वो तो रेगिस्तान का जहाज है, तुमने जहाज गुम कर दिया, जहाज वापस आना है। हमारे लिए तो ऊँट जो है मिराज था उस समय। ऊँट के बगैर तो हम कैसे काम कर सकते थे, ना कोई सड़क थी, ना कोई ट्रैक था, ना कोई गाड़ी होती थी, कैमल पे चलते थे हम लोग। अमेजिंग स्टोरी कि जो ऊँट है वो सरकारी प्रॉपर्टी है, जहाज है, तो आप जहाज नहीं खो सकते। हमारे रावत साहब अभी ही सर्वाइविंग, जो मेरे फर्स्ट CEO थे, बोले ऊँट चला गया पाकिस्तान और तुम बाहर हो। मैंने सर मैं लाता हूँ ऊँट। ऊँट जब लेके आए उनको खबर करी तो बोले एंजॉय पार्टी आज। ऊँट आ गया वापस में, ठीक है। नहीं, ऐसे कई केसेस सिविलियंस के कैटल चले जाते हैं। हाँ, तो वी हैव टू कॉन्टैक्ट एंड रिट्रीव देम। हाँ, हो जाते हैं कई बारी काट कूट दिया बकरी गाय को तो फिर नहीं मिलते, बट अदरवाइज जनरली रिट्रीव हो जाते हैं। इस तरह से पर राजस्थान में एक और चीज़ मैंने देखी थी, वो जो फट्टा लगाते हैं ऊँट पे फ्लैट करने के लिए, वो जो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बॉर्डर फेंसिंग के साथ, जब से फेंसिंग, ये फेंसिंग के बाद से शुरू फेंसिंग के हुआ। बाद, हाँ। फेंसिंग से पहले खाली हम सुबह जो है पग्गी, सुबह हमारी ड्रिल होती थी 6 बजे, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग ही जैसलमेर रही है, 4 साल में वहीं रहा शुरुआत में। तो पेट्रोल सुबह जाती थी और पूरे पिलर के साथ वो पेट्रोल करके ये पता करती थी रात को कोई क्रॉसिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि फ्रेश क्रॉसिंग पता लग जाता था। और अगर तेज रात को हवा चली है तो वो ढक जाता था। अब क्या हुआ कि जब से तार कांटा लग गया, तब से अगर किसी ने मैनिपुलेट किया तार कांटा और उसने क्रॉस किया है, तो ये फट्टा चला इसलिए देते हैं कि कोई भी क्रॉस करेगा तो पैर का निशान आ जाएगा उसके ऊपर। और फट्टा नहीं चलाएंगे, फट्टा चलाने से बिल्कुल प्लेन जैसे प्लास्टर्ड वॉल हो जाती है, वैसे पूरा एरिया हो जाता है। और ये ड्रिल अभी भी चल रही है। पर जो वहाँ पे फेंसिंग भी, उसका भी मतलब कभी कभी तो कोई मायने नहीं होता, क्योंकि वो सैंड ड्यून्स की वजह से तो कभी कभी वो कुछ एरिया बार्ब्ड वायर ऊपर रहता है। जैसलमेर में शाहगढ़ बल्ज शिफ्टिंग ड्यून्स सैंड्स की वजह से, हाँ, तो वो भर जाते हैं, तो फिर इनफेक्टिव। तो कभी कभी वो बार्ब्ड वायर सैंड के नीचे चला जाता है, कभी कभी ऊपर जा। तो
for BSF, which is the most difficult area to patrol? हमारे बॉर्डर में अगर आप देखें तो टेरेन वाइज राजस्थान, गुजरात, ऑपरेशनली जम्मू, पंजाब, सरक्रीक का भी, सरक्रीक मार्शी एरिया है, हाँ, सरक्रीक इज वाटर विंग, BSF वाटर विंग डज इट। पर इस बार वो भी था। BSF के पैदाइश की हिस्ट्री भी सरक्रीक से शुरू होती है सर। 1965 में सरदार पोस्ट, रण ऑफ कच्छ से ही तो शुरुआत वो उसका किस्सा बताइए। उसमें सर बताइए। कच्छ वॉर ऑफ अप्रैल 65 एग्जैक्टली सर, तो उस समय हुई, एंड देन द गवर्नमेंट फाउंड दैट द स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस जो अभी तक की बॉर्डर गार्डिंग करती थी, वो दे वर नॉट even fit enough to face up to small skirmishes. तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की, headed by then Home Secretary Mr. LP Singh, Mr. Rustam ji, General Chaudhary, ये सबों की कमेटी, and then they decided that we should have a permanent force, centrally controlled force to guard the borders of India with Pakistan. So that time Pakistan was on both sides. So वो बनी, and then since ये जो state armed police लड़ाई जो कच्छ की हुई उसमें they were ineffective. So one of the stipulation was कि this force should be capable of supporting army war efforts. तो उन्होंने फिर कहा कि इट शुड बी मॉडल्ड ऑन इन्फेंट्री बटालियन एंड इट शुड बी इक्विप्ड सिमिलरली। तो हमारे आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह इक्विपमेंट जैसा है तब से। तो 65 1 December देन वी वर रेज्ड 25 odd battalions, now we are close to 200 battalions. So that is the history of the Sarkreek. पाकिस्तान ने सरक्रीक से शुरू ऑफेंसिव पाकिस्तान ने हमला किया था ना, देयर आफ्टर द UK Prime Minister, then there was a tribunal which gave an order that 90% of the Kutch is with us and 10% went to them. I still remember, ये शायद 2010 की बात है या 11 की बात है। हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बात चल रही थी, एंड देन यू नो दिस एट दैट टाइम ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इंडिया पाकिस्तान, दोस्ती, अमन की आशा, ये सब बातें, हाँ, के बाद हुआ था फिर। तो ये सब बातें चल रही थी और मैं भी बैठी हुई थी, तो कुछ सीनियर अफसर भी बैठे हुए थे और जो हु वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि हाँ हमें अमन कायम करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, इसी तरह हमारे ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो फिर यू नो आवर यूथ विल बेनिफिट, ये सारी बातें चल रही थी। तो उस टाइम उन्होंने कहा था, वेरी सीनियर पर्सन, और मैं नाम नहीं लूँगी इन लोगों का अब क्योंकि अब तो वो कुछ और ही राग अलाप रहे हैं, पर उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें सियाचिन को माउंटेन ऑफ पीस बनाना चाहिए। और आपकी क्या राय है? तो एक एक करके सबसे राय पूछ रहे थे। माउंटेन ऑफ पीस बनाना चाहिए और सरक्रीक को भी वी शुड ब्रिंग इन कॉन्वर्सेशन, में भी इसमें हम वी कैन टॉक एंड वी कैन ब्रिंग सरक्रीक। तो जब इस तरफ आए, जब मेरी बारी थी, मैंने कहा कि हाँ 2011 की बात है, ऐसे हाँ बात कीजिए, सरक्रीक को भी ले आइए, क्योंकि सरक्रीक का आप लाएंगे तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो बड़े ही खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मैंने कहा ला के तो देखिए, मतलब 2014 तक क्या, वो तो उसी वक्त टॉपल कर देते। 16 में भी देखिए। तो सरक्रीक इज अ इकोनॉमिक इशू। बट कैन यू इमेजिन अ गुजराती चीफ मिनिस्टर अलाउइंग Sarkreek to become an issue whereby you can start Aman Ki Asha in Gujarat? Issue without issue तो नहीं हो सकता। सरक्रीक तो जो है ना बड़ा टिपिकल इशू, वी हैव हेल्ड आई थिंक 16-17 ये वो डोसियर पे डोसियर जो चलता था, बट देयर वाज नो चांस पॉलिटिकली दैट ही वुड हैव अलाउड एनीथिंग। ऐसा कहाँ उदाहरण मिलेगा मैडम कि पठानकोट अटैक के बाद SIT बनी और उसमें ISI का कर्नल पार्ट बना उसका। इंडिया ने कम पेशेंस नहीं दिखाया। ऐसा हो सकता है कि पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ, SIT बनी, DIG लाहौर इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर एंड वन ISI कर्नल वाज पार्ट ऑफ दैट SIT who came to इंडिया। इस पे कितना हल्ला भी मचा। क्या ये पॉसिबल है आज की तारीख में? लोग कहते हैं भारत को कि आप रिस्पांस ऐसा किए, आपने स्ट्राइक किया, बट इंडिया ने कोई सॉफ्ट एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म छोड़ा? मुझे तो नहीं लगता छोड़ा। जितना कर सकते थे किए।
तो इसके बाद अब ये सब करने का कोई टाइम और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वी शुड वेस्ट टाइम इन दीज थिंग्स। जो हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर में जो रिस्पांस है, आई थिंक हमारी कंटिन्यूटी इसी पर बिल्टअप होनी चाहिए। हाँ। यही हमारा बेस लाइन अप होना चाहिए। एक क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू इज कि जब शेलिंग होती है तो उस वक्त हु इज़ द पर्सन हु डिसाइड्स कि काउंटर शेलिंग हमने करनी है, या फिर हैज़ इट टू गो अप टू द लाइन ऑफ चेन ऑफ कमांड और ऊपर से नीचे तक आता है? कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है टू द पीपल ऑन द एट दैट प्लेस टू टेक एक्शन? पीस टाइम इट इज़ जनरली, जैसे LC के ऊपर BSF इज अंडर ऑप्स कंट्रोल, तो पीस टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट गोज अप टू द कोर कमांडर, हाई ट्रेजेक्टरी वेपन्स। जो स्मॉल आर्म्स हैं वो तो ट्रूप्स इस्तेमाल करते हैं, दे वी कीप फायरिंग, बट वॉर टाइम आई थिंक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वॉर टाइम में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इवन पीस टाइम में स्मॉल आर्म्स पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वी हैव बीन रिस्पॉन्डिंग both in Jammu 200 kilometers IB and also on LC. There's no restriction. Peace time, there never has been any restriction. But high trajectory weapons, it has to go, because high trajectory weapons का असर एरिया है, एरिया में कोई collateral damage ना हो जाए, इसलिए then वो ऊपर के लेवल पे डिसीजन लेते हैं। एंड देन प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हाई ट्रेजेक्टरी वेपन्स इस्तेमाल कर लें, सपोजिंग a company commander does it, uses his mortar, or a CO uses his 81 mortar which has a range of 5 8,000 meters, so it might escalation. Small arms is immediate retaliation. Sometimes blowing up the checkpost and things like that, वो कौन करता है फिर? तो फिर जब वो ज़्यादा heavy shelling हो जाती है, like it happened Dandar post in Samba sector. So BSF blew it. BSF blew it. लूनी को तो बॉम्बर से उड़ाया है। In fact जब infiltration की बात हो रही थी ना, even during height of Sindoor, they tried to infiltrate people from that area. तो 6 मारे थे हमने, 7 मारे थे अभी, not लूनी, हमारी गलाव टांडा, उनकी ढंडार, अच्छा, उनकी ढंडार, और भी दूसरी जगहों पे हुआ। बट सो इन्फिल्ट्रेशन इज समथिंग दैट दे कीप डूइंग। तो जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, इज दैट पहले आप वर्बली बोलते हो कि वापस जाओ? नहीं। वहाँ जम्मू कश्मीर के सिचुएशन में वो तो है ही नहीं है। वहाँ तो आपको बोलना ही नहीं है JNK की सिचुएशन में, पॉसिबल नहीं, वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन जनरली ये होता है कि जब प्लान्ड इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन में इनके रेगुलर फोर्सेस के तरफ से फायर खोना एक मल्टीप्लायर है, कवर फायर देने के लिए। क्योंकि वो जब अगर फायर खोलेंगे ना तो हमारी पोस्ट को इंगेज करते हैं, उनका फायर अगर शुरू हुआ तो हमारी तरफ से काउंटर फायर होगा। तो फोर्सेस जब इंगेज होंगी तो उसी के शेडो में इन्फिल्ट्रेटर अंदर घुसना चाहते हैं। तो फायरिंग जब होती है तो पहला इंडिकेशन ये मिल जाता है फोर्सेज को कि इन्फिल्ट्रेशन होने जा रहा है। तो वी प्रिपेयर ऑन 2 fronts, एक तो काउंटर फायर भी करना है और जो इन्फिल्ट्रेशन को प्लगिंग करनी है उस पर भी हमारी नज़र बढ़ जाती है। तो इसीलिए तो इन्फिल्ट्रेटर को तो इनके रेगुलर सपोर्ट करते हैं ना। कई बार तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उन्होंने मोबाइल मोटर को यूज करते हैं। एक जगह अपनी गाड़ी खड़ा की और मोबाइल गाड़ी से उन्होंने 10 शेल मारे, जगह छोड़ दी, 5 किलोमीटर आगे गए, वहाँ से 10 शेल मारा, क्योंकि अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहते करने के लिए कि यहाँ से फायर किया, जब तक हम काउंटर बम्बार्ड करेंगे तब तक वो जगह छोड़ देंगे। ये तो रेगुलर ही कर सकता है। ये लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद गाड़ी लेके नहीं चलेगा जब तक इसमें पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का फिजिकल सपोर्ट नहीं है। ये इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इतना क्लियर कट सपोर्ट, इतना प्रेसिजन सपोर्ट पाकिस्तान की आर्मी ही दे सकती है, क्योंकि उनके यहाँ भी तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है। ये जो लोकल टेररिस्ट एलिमेंट हैं वो क्रॉस करेंगे। अब जैसे खुदाई, जो टनल ओनल की खुदाई होती है उसमें भी पूरा उनका इंस्टीट्यूशन शामिल है। 500 मीटर लंबी टनल ह्यूमनली कौन खोद सकता है मैडम? 30 फीट नीचे खुदाई। तो निश्चित रूप से इसमें वो कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस काम में उनके रेगुलर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आर्मी फॉर्मेशन, उनके डेजिग्नेटेड लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं ये खोदने में। ऑल्सो इन दीज बॉर्डर एरियाज, मैंने कई बॉर्डर एरिया में जा चुकी हूँ और हमेशा
वहाँ पर जो सोल्जर्स तैनात होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मिनटों में सब कुछ बदल सकता है. लाइक आई हैव ठीक गॉन बोलता टू several points on the India-Bangladesh border, from Assam to Bengal and to the Meghalaya. All those areas I've been. मिनटों में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. I've been on IB, I've been on LOC. वहाँ पे भी same responses. हमारी छोड़िए, I have seen in Israel कैसे वहाँ पे. I have been to the Cyprus Turkey border. वहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि आप गाड़ी से उतरें और कभी कभी सिर्फ आपका कपड़ा जो है वो कोई सिग्नल उनको दे देता है कि आप कोई और हो. इट इवन अ मिनिस्क्यूल सो दैट मिनटों में थिंग्स कैन टर्न अराउंड. एक बस जा रही है, हम लोग टूरिस्ट हैं या हम जर्नलिस्ट हैं, उनको कोई और सिग्नल मिल गया है और हम बस से उतर जाते हैं. सडनली वी आर टोल्ड गेट इन गेट इन गेट इन. वो they have started mobilizing. It can go wrong within minutes. बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं होता जनरली. बांग्लादेश बॉर्डर पे जो चेंज हो जाता है दैट इज मेनली व्हेन क्रिमिनल्स आर इन्वॉल्व्ड. हाँ, बट बांग्लादेश बॉर्डर सर असम में, सॉरी टू बांग्लादेश border वहाँ पे हुआ है मेरे साथ. रात को हुआ था एंड वी वर टोल्ड यहाँ से निकलो बिकॉज द अदर साइड दे वर नॉट श्योर कि वो पी पा के आए हैं, they are trigger happy, कुछ भी कर सकते हैं. I do not know. हाँ. Normally I have commanded a frontier in on Bengal border. वहाँ पे generally must be a particular specific पोस्ट होगा शायद. कुछ होगा. But generally वहाँ पे अगर criminals हो गए हैं then things might change. पोचिंग वाले भी होते हैं. Poaching- तो कभी कभी कुछ कह नहीं सकते कि वो पोचर्स हैं कि क्या कुछ है. हो सकता. क्रिमिनल्स होंगे बॉर्डर Criminals पे, हाँ. तो वो आपको देख के या आपकी गाड़ी देख के दे माइट पैनिक, दे माइट थिंक दैट वी आर गोइंग टू फायर ऑन देम एंड दे माइट रिटेलिएट. वो भी आर्म्ड होते हैं. सो बट ऑन पाकिस्तान बॉर्डर स्पेशली नॉर्थवर्ड्स ऑफ पंजाब दिस सिचुएशन काइंड ऑफ सिचुएशन माइट अराइज. वो हमारी मूवमेंट से प्रोवोक होके दे माइट mobilize and give warning signals. हमने ये फिल्मों में देखा है और कि वो एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, ये ऐसे होता है. ये होता है कभी कभी. ये not everywhere. Probably command post. हाँ, वो probably होता है. command post in Baramulla, Uri. Probably there. Not other. जहाँ तक आवाज जा सकती है. और वायरलेस सेट पे तो जब 2000 बाद जब से ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था तो वायरलेस सेट ही एक कम्युनिकेशन का साधन था. टेररिस्ट भी वायरलेस सेट ही यूज करते थे. तो उनके सीज किए हुए वायरलेस सेट हम लोग ऑन करके और पूरे एक रूम में लटका रखे थे, अलग अलग मॉडल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के. उससे पूरे दिन गालियां चलती थी. वो हमको गालियां देते थे तो कई ऑपरेटर झल्ला के थोड़ी देर बाद ये भी गाली देते थे और कहते थे कि पिछले 5 घंटे जो तुम दिए हो उसका हम इकट्ठा देंगे क्योंकि हमें और भी काम करना है. बाकायदा गाली चलती थी. वो है वो जब एक इट्स ऑल्सो वेंटिंग ना. हाँ, वेंटिंग बिल्कुल. मतलब कि उसने कितना खराब उसने हमें कहा तो हम उसमें थोड़ा जोड़ के और कहेंगे जिससे मतलब हमारी पोजीशन थोड़ी और तगड़ी हो कि मतलब हमने ऐसा कहा. Militants normally. Militants गालियां गुलियां. फौजी no. But I've heard that somebody from the Gurkha battalion कहते हैं कि he wanted कि कोई गाली दे वापस. तो he was मतलब they were at the senior, they were at a height. एक height भी एक important होता है. वो नीचे था तो ये he tells his junior कि भाई तुम गाली दो उसको ताकि वो लगे कि सीनियर आया हुआ है, तुम गाली दो. तो गाली दे नहीं पा रहा. गुरखा गाली नहीं दे सकता. तो वो खुखरी चला सकता है. So he said देखो तुम ऐसे करोगे तो हमको कुछ करना पड़ेगा. तो उसने 4 गालियां और दी. That was enough to get these people to jump down and हलाल कर दिया उनका. बड़ी फनी चीजें होती है एलसी के ऊपर में. There was this World Cup क्रिकेट टूर्नामेंट 94-95 में कभी था. तो हमने पाकिस्तान को हराया एंड ऑल आर पोस्ट ओपनड अप ऑन पाकिस्तान. अच्छा. सेलिब्रेशन. हाँ. तो कभी ओपन अप बोले तो ओपन अप मतलब फायर क्रॉस बॉर्डर. तो दिस इज एट टाइम्स कभी वो होता है. इट इज नॉट ऑलवेज कि एनिमिटी में कर रहे हैं. इट इज सेलिब्रेटरी और वो चुप बैठे होते फिर वो भी करते हैं. बट दीज आर नॉट जनरली नॉट एम्ड फायर. दीज आर हवा में फायर कर दिया वो.
So this keeps happening. क्रिकेट इज वेरी इम्पोर्टेंट. क्रिकेट इज इमोटिव. हॉकी में भी अब तो हॉकी वो भी काफ़ी डाउन हो गए. हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है. हॉकी ऑल्सो समटाइम्स, मेनली क्रिकेट एंड हॉकी. और कुछ चीज़ें हो गई है ना, कुछ हमारा इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, सर कह रहे हैं. तो उस समय स्वीट्स भी एक्सचेंज होते हैं. वो भी होते हैं. कई पूरे 365 दिन का जो कैलेंडर है ना मैडम, ये पूरे कैलेंडर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है. एक एक महीना एक एक डेट का. पूरे 365 दिन का तो नहीं है, लेकिन कुछ 25-50 तारीखों का तो है. जैसे न्यू ईयर्स है तो दे विल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थोड़ा करेंगे ही. वो मतलब जस्ट न्यू ईयर मना रहे हैं हम. दिवाली है, होली है, दशहरा है, या हमारा 2 अक्टूबर है. तो जो हमारे नेशनल डेज़ हैं या कुछ ऐसे डेज़ हैं जिसको वो लोग बड़ा अपना सिग्निफिकेंट मानते हैं. इवन कश्मीर के अंदर देखिए टेररिस्ट भी जो रिएक्शन करते थे, महाराजा हरी सिंह के टाइम पे एक घटना हुई थी जिसमें लोकल पुलिस के लोग मारे गए थे. तो वो तारीख अभी भी वो मनाते हैं उसको. इसी तरह से आप देख लीजिए जो किसी को फांसी पर लटका दिया, जैसे कि JKLF का जो चीफ था जिसको फांसी हुई थी. इसी तरह से ये जो गाजी बाबा का हैंडलर था, गाजी बाबा का जो फुट सोल्जर था. तो ये जो डेट्स हैं, जिन जिन डेट्स में फांसियाँ लगी हैं, शब बारात की रात है, मुहर्रम की तारीख है, यानी कुछ कुछ डेट्स है जिसको ये फायरिंग से भी कनेक्ट करते हैं. जस्ट टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस कि देखो आज शब बारात है, मैंने फायर किया. आज न्यू ईयर से हमने फायर किया. जैसे क्रिकेट की बात हुई, क्रिकेट में जीत गया, इंडिया जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, तो इन इवेंट को भी उससे कनेक्ट करते हैं. तो उन इवेंट्स को भी पढ़ के आदमी केयरफुल रहता है कि आज कुछ होगा, ध्यान रखना. आज होली है, कुछ ध्यान रखना. दिवाली है, कुछ ध्यान रखना. तो इन तारीखों का भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है इस टाइप के मेरी मेकिंग का जो ये फायर करते हैं. मेनी टाइम्स इट्स नॉट फैटल, बट इट्स ए सॉर्ट ऑफ सिग्नल दैट सी मैं हम ये जो आपने मिठाई जो एक्सचेंज होता है दिवाली वाले दिन और ईद वाले दिन एंड इंडिपेंडेंस डे, देयर इज आल्सो दैट वेरी अब्सर्ड, आई एम सॉरी टू कॉल इट अब्सर्ड, आप लोगों के लिए मे बी इट्स इम्पोर्टेंट, वो जो वाघा अटारी पे जो होता है, वो जो सेरेमनी जो होती है. What do you have to say? I agree with that. It is actually not the classic drill that we should be doing. But then it has become a tourist attraction. If that josh is not injected, probably tourists will stop coming. And नहीं मैं एक चीज बताता हूँ इसमें कि our population is not aware of what happens on the border. You have called us to talk about BSF. So probably word will go around, but hardly any media or any news channel, etc. they cover what BSF does. Border पे कुछ हो रहा है तो फौज है. Internal security में कुछ कर रहे हैं तो पुलिस है. पुलिस है. CRP भी नहीं है. I mean, the CPOs are not on the horizon. I get that. So अगर ये इस तरह से जाके टूरिस्ट वहाँ जाएं तो देखते हैं बॉर्डर पे क्या है. अदरवाइज बड़ा एक क्या वर्ड है, बड़ा इमेजिनरी सा रोमांटिसाइज्ड व्यू होता है लोगों का कि बॉर्डर ऐसा है ना, और हमेशा लड़ाई रहती है या कुछ रहता है. आफ्टर ऑल जवान्स आर ह्यूमन बीइंग्स. When they interact, there is humor also. There is sometimes a serious talk also. There is sometimes exchange. But I agree that drill part is very aggressive. And I was... but drill is important I mean, I'm not talking about that exaggerated drill, but drill is very important in your camps. I've been to some of your camps. वहाँ पे the women are also involved in that. चाहे वो आपका वॉलीबॉल खेलते टाइम हो या मार्चिंग हो या जो भी हो, ड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द मोरल ऑल्सो एंड टू कीप देम एक्टिव एंड एजाइल. Inculcate discipline. Drill is uniform movement of everyone. So inculcating discipline is mainly through drill and other action. Baaki sports activities is bonding. It is relaxation, recreation, bonding between jawans and officers, and between jawans also. जी. So that all those aspects are
इम्पॉर्टेंट. लेडीज़ आपने मेंशन किया तो बड़ा अच्छा यू हैव ब्रॉट दिस हियर. वी नाउ हैव अबाउट 10,000 women in the organization. And after the initial hesitance of a male-dominated organization in accepting them, things are settling down. Things are settling down, and they are now doing almost the similar duties that the men do. I was talking with a field commander recently in Punjab or Jammu somewhere, and he said that there was a thought that we should withdraw girls from the borders during this Sindoor. But then some of the girls said, no, we'll stay here and we'll do duties. So that kind of jo Hindi Urdu mein kehte jazba is also developing in women also. So only thing is that as the number grows to the required limit of 15%, integration to ho jayega. We'll also have to sort of modify HR policies so that men do not get overburdened. अभी थोड़ा सा फिर भी वो उनको थोड़ा सा protective. So that I'm sure the policy makers are considering. I'm going to come to the final question is about PTSD. You have suffered injuries. So जो post-traumatic stress disorder, which is a very common thing, especially among people who are constantly in these kind of situations. How did you cope with it? And once you retired, do those scenes still come back to you? And the injuries were very fatal, and it took almost. ये कब हुआ था आपका? Exactly 2000 August 2003. 3 में. And I got discharged from AIIMS on 19th December 2007. For all these 4.5 years, I was not continuously admitted. लेकिन एडमिट होता था, बीच में फिर 4 हफ्ते के लिए छुट्टी हो गई क्योंकि मल्टीपल सर्जरीज होती थी. स्टमक तो कंप्लीट 4 बार खोला, जिसमें कोलोन निकाल दिया, बड़ी आंत निकाल दी, फिर एनल पाउच बनाया, एक्सटर्नल बैगेज था, हाथ का रिपेयर चला. तो कुछ चीज़ें जो हैं इनएविटेबल हैं. दोज थिंग्स आर फॉर लाइफ. जैसे मेरा इंटेस्टाइन हो तो पूरे लाइफ के लिए है. मतलब 16 बार 18 बार वॉशरूम जाना 24 घंटे में, तो नॉट बियॉन्ड 2 आवर्स आई कैन स्लीप. 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सो सकता. ये लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है. इसीलिए आइज़ मेरी थोड़ी आपको अलग दिखेंगी दूसरों से, क्योंकि नींद हो नहीं पाती. उसका कोई चारा नहीं है. हाथ जो है इससे तो हमने अपना कर लिया सेटल. लेकिन जब ये सिलसिला चला, जब एक ट्रीटमेंट का फेज़ आया कि इतने सर्जरीज हो रही हैं, और तो ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी हेल्प किया, नो डाउट. डिपार्टमेंट ने हेल्प किया, और मेडिकल फ्रेटर्निटी में जहाँ जिसके पास में गया, सब ने बड़ा दिल खोल के मेरी मदद करी. लीलावती हॉस्पिटल मुंबई तक गया. डॉक्टर्स ने फ़ीस लिए. जब उन्हें पता लगा तो काउंटर पर आए और बोले कि नहीं, ये फ़ीस वापस कर दो. मुझे नहीं पता था. मतलब दैट हैज़ बीन द सपोर्ट. बट एक चीज़ है ना कि फोर्स में भी जनरेशन्स चेंज होती रहती है, लीडरशिप चेंज होती रहती है, हायरार्की चेंज होती रहती है. 2003 का जो सक्सेस था, जो 2003 का ट्रॉमा था, वो 2025 वाले को नहीं पता है, 2020 वाले को नहीं पता है. तो बहुत सारे जगह आपको यू हैव टू रिमाइंड पीपल, और पीपल जैसे आपने इस चीज़ पे रिसर्च किया, तो लार्जर पोर्शन ऑफ द फोर्स के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही पता करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ है. तो कुल मिला जुला के चीज़ें इतनी कोई जनरेशन तक कंटिन्यू होती नहीं हैं. जो जहाँ है वो अपनी दुनिया में व्यस्त है. मतलब ये ऐसा फील होता है. बट लार्जली सपोर्टिव है. मैं ऑर्गेनाइजेशन और आपकी खड़ा फैमिली रहता है. फैमिली उस समय तो मैं उस समय असर होता है. इनकाउंटर के समय बच्चे साथ ही थे. मैंने तो लाल चौक से बच्चे पढ़ाए 4 साल. उसी बटमालू से ही बस से भेज के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए. बेटे का बोर्ड था, 10th बोर्ड था उस साल. मैं दिल्ली एडमिट, बच्चे श्रीनगर में उसी जगह जहाँ इनकाउंटर हुआ था, और इनकाउंटर के समय भी वहीं थे. 2 बार सुसाइड अटैक हुआ कैंपस में, तब भी अंदर ही थे. बच्चों ने तो लाइव सुसाइड अटैक खुद देखा, घर से डेड बॉडीज़ देखी हैं, मोर्चों से देखते रहे हैं. बच्चे तो उसी का पार्ट रहे हमारे सिस्टम का. क्योंकि कोई पता तब नहीं था मैडम कि ये कितना लंबा चलेगा कश्मीर टेररिज्म. कश्मीर में आप दोबारा कब पोस्टिंग आपकी होगी, बीच में कितना पीस पीरियड आएगा, नोबडी वाज श्योर दैट टाइम. तो बच्चों पे वो असर रहा. लेकिन वो चीज़ देखा कि बच्चों को थोड़ा बिल्टअप भी किया, यानी उसके फ़ायदे भी थे. जैसे आज की जितनी चीज़ें हैं उन्हें लाइव पता है. नहीं अच्छा 2003
ऐसे था, वो तो हमने देखा है, पता है। तो ऑन वन साइड दे बिल्ट अप देमसेल्फ बिकॉज ऑफ दो क्रिटिकल मोमेंट्स, और दूसरा साइड ये था कि बड़ा सफ़र भी किया उन्होंने। फिर दिल्ली आए, दिल्ली का पर अभी जब वो देखते हैं, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत कनेक्ट करते हैं खुद को, क्योंकि एक लिव्ड एक्सपीरियंस है और बड़ा उसको अपने से जोड़ते हैं, उस पर अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, फीडबैक भी मुझको देते हैं, क्योंकि बच्चे सब बड़े हैं हमारे, ऑल 3 आर मैरिड, और एक यूएस में है, तो वहाँ से अपने फीडबैक देता है। मैं तो खुद यूएस में था, तो आपके पॉडकास्ट रोज ही खोल के देखता रहता था। तो कल बच्चे से शेयर किया। He has personally undergone that trauma. I remember 84, during Blue Star, we were tasked to capture that Hotel Temple View. It is not there now. Hotel Mountain Temple View was facing the temple. Harmandir Sahib. हाँ, our we had a STF at that point of time, BSF में. STF So I was part of that. We were tasked to clear that Hotel Temple View of the militants. So I remember after doing our task, we were lying low because firing was going on. A Jawan next to me, Kundan Singh was the name. He got a bullet in his heart, and we couldn't evacuate him. So he has personally undergone. I still sometimes remember that कि वो जवान मेरे बगल में बैठा बैठा चला गया. I was a young AC at that time, but I couldn't do anything. So that sometimes those flashbacks do come. इसी में एक शहीद हो गया, हमारे साथ वाला एक शहीद ही हो गया, उसकी लाइफ रही PTSD. So I thought of reinforcing that point that trauma sometimes stays on. आप कितनी देर थे 1984 में अमृतसर में? I was there for the duration of Blue Star. Blue Star. We went there around I think 1st of June or something, and returned around 10th of June. So you saw Blue Star completely? I participated as a part of preliminary operations. We had a small team of BSF. आप एंटर तो नहीं कर रहे? हम बाद में एंटर किए जब हो गया था ना ऑपरेशन. Our task was to clear Hotel Temple View and hold it. कितने मिलिटेंट्स थे उस वक्त वहाँ? 5 थे. हाँ. On one of the floors. वेपन्स के साथ? वेपन्स थे, हाँ. Okay. And when you say कि clear, आपने कैसे clear किया? Clear meaning, clear is the terminology. That's what I want to know. So we cleared it by storming it, physically storming it. And they were killed? They were killed. We were using firearms. So this is what I want to ask both of you, that you used firearms, you kill a militant, or you kill a terrorist, or you kill a separatist, but the trauma is more when your man dies in action. Is there trauma when you see the body of the person you've killed? It is there. It is there. वो भी है. हाँ, वो भी है. सिर फटा हुआ, कंप्लीट खोपड़ी फैली है, चेहरा नहीं पहचान सकते, ऐसे ऐसे सिर को इकट्ठा करके गमछा में बांधना पड़ा, ऐसा भी हुआ सुसाइड अटैक के समय. वो भी है. But then it is a mixed feeling, you know, कि we have managed to eliminate somebody who was against the country, us, against the country. But if your Jawan gets killed in this manner, he's a buddy. He's a buddy. He's my responsibility as commander. He was my responsibility. He lost his life under my watch. तो वो चीजें होती हैं. पर ये जो घातक हमले होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं, जब आप वापस आते हैं, कोई काउंसलिंग होती है, कुछ होता है, कुछ नहीं ऐसे? डीब्रीफिंग होती है. वो तो सिर्फ आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना होगा. कुछ क्लिनिकल नहीं होता कि क्लिनिकली आप कुछ करिए. आई थिंक बिकॉज दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच यू कंडक्टेड एंड नेक्स्ट चैप्टर इज रेडी फॉर यू. सो कई बार बैक टू बैक होता था, कई बार ऐसे इनकाउंटर से आए, मारे मुरे गए, ऐसे सो गए हम लोग. अगले दिन वाइफ पूछ रहे हैं क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे कुछ हुआ. अरे नहाया हुआ नहीं रात को आपको? मैंने कहा इसमें नहाना धोना कौन सा, इसमें गंगा स्नान हमें करना है, मेरा ड्यूटी पार्ट है. फिर अगले दिन चल दिए. तो कहने का अर्थ है कि इसका कोई ऐसा क्लिनिकल ब्रीफिंग नहीं है कि टू टेक देम आउट ऑफ ट्रोमा. इट्स जन नॉर्मल जो ब्रीफिंग होती है, रोल कॉल में लड़के खड़े हैं, एक डेड बॉडी जा रही है,
उसको कमांडेंट साहब जा रहे हैं, आईजी साहब जा रहे हैं रीथ लेइंग के लिए, वापस आए। फिर उसके साथ जो जा रहा है वो पेंशन पेपर भी लेके जा रहा है कि जब रिचुअल हो जाए तो थोड़ा साइड में लेके विडो से साइन भी करा लेना, क्योंकि पेंशन जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। देखिए ना कितना इमोशनल हिज वर्क है। और सबके टेबल पे सारे एनओके की डिटेल होती थी एडजुटेंट के, टेलीफोन नंबर, पता, क्योंकि किसके साथ किस दिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो हमको टाइम ना गंवाना पड़े फैमिली को इन्फॉर्म करने में। और शुरुआती दिनों में मैडम कॉफिन बनाने का तरीका नहीं पता था, बॉडी पैक करने के लिए एम्बाल्मेंट का कोई ड्रिल समझ में नहीं आता था। वो तो कारगिल के बाद शायद प्रोसीजर बना था ना? प्रोसीजर बना। और लोकली जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं, कश्मीर सिचुएशन में सबसे पहले बीएसएफ घुसी थी और हम लोगों को भी इस टाइप की चीज़ का उसमें तजुर्बा नहीं था। यू आर लर्निंग, यू आर डूइंग एंड यू आर लर्निंग, बोथ प्रोसेस फॉर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। आरा मशीन पकड़ा, रात को फट्टे कटवाए, अच्छा ऐसे कील ठोको, करते 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 चीज़ें इवाल्व हुई, क्योंकि इन चीज़ के लिए कोई तैयार नहीं होता। नोबडी कीप्स प्रिपेयर्ड फॉर लास्ट रिचुअल। ये तो एक ना इत्तफाकी है। तो सारा वो कैसे घर वाले को इन्फॉर्म करोगे, डेड बॉडी जाएगी तो इमोशन कैसे कंट्रोल करोगे। जैसे आपने एक सिर कटे वाले की बात बोली, देवरिया में बॉडी गई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी गए थे। मतलब फैमिली को समझाना मुश्किल हो गया कि इसके ऊपर का हिस्सा कहाँ है। फैमिली चीख रही है, यू हैव ब्रॉट द बॉडी इन पार्ट, इट्स नॉट ए कंप्लीट बॉडी। आई मीन दीज आर वेरी। उसके साथ ऑफिसर जाता है, यूनिफॉर्म में होता है, वो कैसे इमोशन को मैनेज करता है। फिर वो एक पर्टिकुलर जो ज़रूरी संस्कार है वो होता है। फिर आप आ रहे होते हैं, मतलब सब चीज़ एक साथ चल रही होती है। कई बार एक चीज़ आप कर रहे हैं, पीछे इनकाउंटर लगा हुआ है। हमारे यहाँ बोलते हैं इनकाउंटर लग गया है, मतलब एक इनकाउंटर दूसरा चल रहा है, उसमें कोई इंजर्ड हो गया। ऐसा भी घटना हुआ है कि ग्रेनेड इंजरी हुई, मेडिकल कराने लड़के गए, वापस आ रहे हैं, रास्ते में दोबारा ग्रेनेड फायर उनके ऊपर हो गया। दे वर इंजर्ड वन डे बैक एंड दे वर रिपीटेडली इंजर्ड नेक्स्ट डे। ऐसा भी घटना हुआ। अभी पता नहीं लग रहा है ये वाला छर्रा कल का है या इधर वाला छर्रा आज का है। ये टेररिज्म का सिचुएशन था। अब ये सब लीड फोर्स रही है 15 साल तक श्रीनगर में और कश्मीर में। 2004 तक तो पूरा ग्राउंड तो ये सब के प्रिपेयर किया हुआ। जब मैं ये ऐसी कहानियां सुनती हूँ तो मुझे लगता था कि मतलब 3 महीने पहले मुझे लगता था कि ये पुराने किस्से हो गए, अब कभी नहीं होगा ऐसे। आई वॉज सो रॉन्ग। Yes. My उस दिन से पहलगाम के आफ्टर दैट टेरर अटैक आई कांट गेट ओवर द फैक्ट कि फिर से वही हाल हो गए, फिर से वही किस्से सुनने पड़ेंगे, फिर से वही होने वाला है। 19 अप्रैल को मैडम एक क्वेश्चन हुआ था इसी 19 को। We must work on our intelligence systems. Yeah. TechInt, you said TechInt is important, but human int That is very is extremely important. वो missing है, अभी थोड़ा कमी है उसमें। We must go back to ground, create human resources. ड्राइंग बोर्ड पे फिर से वापस जाना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा। That is the basic thing. Because going to zero state of violence perhaps is not a possibility. With a neighbor like that. Besides, I mean, that is one. Yeah. Even otherwise, eliminating totally is not a possibility. Yeah. But we can take measures जी. to minimize. Same with in Maoism, Maoist areas, same here. जी. है ना? We cannot set a deadline कि इस तारीख तक हम ये militancy खत्म कर देंगे या वो कर देंगे. So we must go back to, I mean, most important is strengthen your intelligence network. Identity. Keep your ears and eyes open. There are electronic footprints. There are other footprints. इस पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, बिल्कुल कई चीज़ें हैं। हाँ, सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना कुछ भी। 19 अप्रैल को मैडम जो इसी फिल्म पे ही एक ब्रीफिंग हुई थी, उस पर एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, 22 को तो हुआ है पहलगांव घटना, 19 को क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर के डल गेट में प्रीमियर हुआ और बड़ा शान शौकत से हुआ, एंड इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द बॉलीवुड आल्सो कि सब लोग कर रहे आए जो भी है। पीस के बारे में क्या है, तो मैंने किसी बोली थी कि पीस इन कश्मीर इज़ वेरी फ्रेजाइल, इट्स अ वेरी गुड साइन, बट सिचुएशन कब यहाँ टर्न हो कुछ नहीं पता। 22 को ये घटना हुई जी। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ आपके 2000 में हो चुकी है, 2001, 2, 3 में हो चुकी है, वो 2025 में नहीं होगी ऐसा नहीं है।
2025 में भी होगी, हो सकती है। और ह्यूमन वर्टिकल अभी क्या है मैडम, जो एक्टिव जनरेशन है, यानी जो बिल्कुल इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है कि वो इस टेररिज्म को ऑन हैंड डील कर रहा है, सोशल मीडिया ओके, कॉल साइन ओके, सिग्नल ऐप ये एप्लीकेशन यूज हो रहा है, अच्छा ये इनके फुटप्रिंट्स हैं, ये इनके सैटेलाइट फ़ोन के हैं, फोटो इमेजरी, यानी ओपन सोर्स है और बाकी तरीके से वो लोग एक चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं और ये बड़ा साइंटिफिक वे भी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन वर्टिकल है वो अभी, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन वर्टिकल पे ऑपरेशन होते हुए देखा नहीं है, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने 92, 93, 97, 2000, 2001 ह्यूमन इंट था, वो देखा नहीं है अभी भी। ओसामा बिन लादेन का भी लास्ट में जब तक वो डॉक्टर कंफर्मेशन नहीं दिया, पोलियो वाला डॉक्टर, तब तक किसी ने ऑपरेशन प्लान नहीं किया। सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी। तो हमको कहीं न कहीं अपने ह्यूमन वर्टिकल को बड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा और उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। जी जी, मतलब क्या है ना कि ह्यूमन वर्टिकल भी कश्मीर के सिचुएशन में ऐसे आसानी से नहीं नहीं आ जाता। दैट इज कि पहलगाम में यही था कि क्योंकि वहाँ पे इट वाज नॉट कंसिडर्ड अ वल्नरेबल एरिया, तो वहाँ पे कोई खबरी था नहीं। जैसे जो बारामुल्ला हो जाए, ये सब एरियाज जो हैं, जो वॉलेटाइल एरियाज हैं, वहाँ पे खबरी होते हैं जिनको पैसे दे दे के आपने कंटिन्यू रखा है पिछले 20 साल से। एक नेटवर्क बन गया है ऑफ पीपल हु टेल यू कि हाँ भाई ये 15 महीने था नहीं, अब ये सडनली यूथ आ गया है, ये कुछ है गड़बड़। पर इस एरिया में जहाँ पे इट वाज कंसिडर्ड नॉट इम्पॉर्टेंट, बैसरान के जो एरिया है, इसलिए वहाँ एक नेटवर्क नहीं था। तो ये कल्टिवेट करना पड़ेगा। The SSB model before it became a uniform force is the best intelligence collection model. वो एक बंदा जाएगा किसी गांव में, 2-3 किलो मीट ले जाएगा, 2 दिन वहाँ रहेगा, 3 दिन चाचा सब उसको बोलेंगे एंड ही गैदर्स इंफॉर्मेशन, है ना। पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। वो गया वहाँ पे, एक मीट लेके गया या सब्जी लेके गया, रोटी खाई वहाँ पे और अपनी आसपास का गप्पे लड़ाई और इन्फॉर्मेशन भी हो गई। अब इसमें पोनी पोर्टर वाले तो थे ही। जी जी जी, वहाँ मैगी बनाने वालों की दुकान है ही। कारगिल इज आल्सो अपॉइंटेड जो शेपर्ड्स थे। सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशन दिया था सर, सबसे पहले उनका इंडिकेशन था कि क्या हो रहा है। तो एनीवे it's interesting आपके जो suggestions हैं, I hope people listen to that and utilize it, and thank you so much for the service that both of you have put in, Mr. Dubey, Mr. Sood, thank you so much कि आप आए, and we hope that the coming years will be more peaceful, and with that hope in our hearts and prayer in our lips, thank you so much. Thank you so much. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.